many are happy to be in the house of the Lord? इतने लोग परमेश्वर के भवन में Welcome, रहकर everybody. आनंदित है। Hallelujah. In the सभी का हम sanctuary स्वागत करते and हैं इस on the भवन में line. और ऑनलाइन Amen. भी। God bless प्रभु everyone. आप Maybe सबको बहुत seated ऐसे for a आशीष moment दे। कुछ before समय we के लिए आप बैठ bring सकते our हैं। speaker for tonight. इससे पहले कि I आज just के want वक्ता to को हम बुलाएं, recognize Pastor Fena Faye. हम यहाँ पर Hallelujah. भाई From पास्टर Quebec फर्नांडो को City. देखता Amen. हूँ जो क्वेबेक Right शहर in से the आए हैं, sanctuary. जो इस Welcome, भवन में Pastor है। Fena Faye. Amen. And पास्टर your फर्नांडो आपका precious स्वागत है wife, Sister और आपकी Michelle. पत्नी बहन Hallelujah. मिशेल। God bless these प्रभु soldiers of the cross. जो We're just so क्रूस happy, के Pastor सैनिक Fena, हैं for we उनका हम preached on स्वागत Friday करते हैं। night, actually Saturday night. Saturday night. शनिवार की So रात को पास्टर we have फर्नांडो some का time with प्रचार है, them. We're going to have some good इसलिए fellowship. Amen. हम उनके साथ And I अच्छी think संगति I करेंगे। can see और मैं Jubilee सोचता हूँ and her यहाँ पर sister, and by the way, I just forgot the other name, Princess. Can you stand Jubilee and Princess? बहन They are the जुबली और daughters बहन of प्रिंसेस Pastor यहाँ खड़ी। Milievo and Sister इन्हें Fletcher. वो God bless you. पास्टर Welcome, की amen, बेटियां to हैं। the Global Convention. इस ग्लोबल Hallelujah. कन्वेंशन में आपका And I'm स्वागत है। just so happy to see everybody and to all the folks on the line. So remember, tonight is the last service आज की here. रात यहाँ पर ये आखिरी Tomorrow's सभा service होगी। is going to be at the कल की सभा Salvation Army, right? Be there सैल्वेशन आर्मी until वहाँ Saturday पर होगी night, and then we'll शनिवार come की back रात तक, और here फिर in the sanctuary for the closing इस service. भवन में हम Amen. समाप्ति की I सभा also के लिए फिर understand आएंगे। that मैं इसमें समझता हूँ James Nutter, which is the son of Pastor जेम्स नटर, Michael Nutter, will जो be पास्टर returning back tomorrow. Is नटर that के right? बेटे James, हैं और कल रात को God लौटेंगे। bless you. जेम्स, प्रभु आपको I आशीष दे। think it's been a really wonderful time to see James, a really lovely man, and I think Pastor Nutter is really blessed to have a son like that. Amen. पास्टर So नटर God बहुत ही bless you, आशीषित and है। when you एक अच्छे return बेटे back, को may पाकर the peace of God go with you. परमेश्वर की Amen. शांति उनके साथ रहे। I also understand that the Bennetts, amen, Sister Samantha and her husband बहन समंता are और उनके also पति returning back on Friday, which is tomorrow, शुक्रवार कल amen, लौटने after वाले हैं the ministers' meeting. So we have सेवकों की सभा enjoyed के बाद, their company really, और हमने really, उनकी really. सहभागिता का Please आनंद लिया stand है। up. Mr. Bennett and Sister कृपया खड़े Samantha, होके God bless you. भाई They are बेनेट going और back to मिसेस United समांता, Arab Emirates जो tomorrow in यूनाइटेड the अरब evening. एमिरेट्स So में may कल शाम God को bless you लौटेंगे। and may the प्रभु peace of ने God बहुत ऐसे आशीष दे accompany you और as you परमेश्वर return की back. शांति Amen. आपके Thank साथ you. रहे Thank you जैसे very आप लौट much. रहे हैं। Well, let's all बहुत बहुत rise up on धन्यवाद। our feet because we और are आइए अब हम really स्थानों पर privileged खड़े to हो have जाए, Pastor David और हमारा एक Mayer बहुत ही of सौभाग्य L'église कि हमारे बीच में पास्टर Lumière डेविड मयूर है, Matin du Soir. Amen. जो In फ्रांस से है। Toulon, in France. I think my French is coming in a little better tonight. मुझे लगता है कि And आज रात मेरी I'm फ्रेंच थोड़ी just so सुधर रही है happी और मैं for बहुत ही Pastor आनंदित हूँ Mayor पास्टर to मयूर के bring लिए, the message to us tonight. जो And so आज के लिए before we do that, हमारे लिए संदेश को लेकर आने वाले। musicians और help इससे us. पहले We're going to कैसे sing करें, Blood संगीतकार मेरी that मदद करें कि हम Jesus shed for me way लहू जो back यीशु ने मेरे on लिए बहाया Calvary. है, I think it's in जो key, कलवरी पर इस is it गीत A में or G? Key G. All right. So give us the key. All right. Oh, that blood that Jesus shed for me way back on Calvary. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power, for it reaches to the highest mountain. Amen. And it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose
Almighty is away. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Oh, for it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength. Oh, from day to day, it will never lose. For it reaches and reaches, hallelujah, to the highest mountain. Oh, and it flows to the lowest valley. Hallelujah, the blood that gives me strength. Oh, from day to day, it will never lose its power. Hallelujah, hallelujah. Can we give him Hallelujah. praise? क्या हम The परमेश्वर की blood स्तुति will करें? never lose its power. वो लहू की सामर्थ कभी कम नहीं होगी। धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for by His grace क्योंकि उसकी I अनुग्रह am से saved. मैं बचाया गया हूँ। Amen, amen. आमीन God और bless you, आमीन। saints. It's प्रभु good आपको to be in आशीष the दे house of the संतोष। Lord. परमेश्वर की भवन Amen. में And होना I ये अच्छी remember बात है। when they और मैं told याद करता David, हूँ he जब उन्होंने rejoiced. दाऊद से कहा वो He said, I आनंदित have हुआ, great joy. उसने कहा मैं And काफी he आनंदित told हूँ। me, let us go जब to उन्होंने the मुझसे house. कहा आइए हम What यहोवा की about the भवन bride को that चले। is united अब and is इस in the दुल्हन के house विषय of में the कहा जो Lord? एकत्रित हुई है I have परमेश्वर के great भवन में है, joy. मेरे पास Amen. महान Because आनंद है, that's where he meets क्योंकि me. वहीं पास वो मेरे Amen, मुझसे amen. So मिलता है। certainly great honor for me to इसलिए be ये मेरे लिए standing काफी before the आदर की Redeemer of बात the है कि Lord. आप जो परमेश्वर के छुड़ाए Amen. हुओं के सामने खड़ा होना। Thank Brother Samuel for मैं the धन्यवाद देता हूँ invitation. पास्टर सैमुअल को Amen. And निमंत्रण के लिए। it's a great honor to be ये standing मेरे लिए now बहुत ही आदर की बात amongst है great warriors of the faith. और महान So I'm योद्धाओं just के a विश्वास small के योद्धाओं pebble के सामने खड़ा हो amongst जाऊं। मैं great तो एक छोटा pebbles, सा great stones, but we all have कंकड़ a हूँ, part to play. लेकिन हमारे So I पास just सबका एक pray भाग है tonight जिसे will be पूरा a करना है। blessing. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि Amen. आज We're की not रात looking हम up to सबके लिए एक man. आशीष हो। Amen. हम We're किसी looking व्यक्ति to को नहीं देख Jesus रहे, Christ. हम यीशु मसीह की ओर देख रहे Amen. And He's the हैं। only आमीन। one that we want और to pray केवल to. वही He's the है only one we want to lift up. जो आदर के He's the योग्य है, only one worthy उसे of हम our उठाना चाहते हैं, praise. वही हमारी स्तुति के Amen, और आदर amen. के So I bring योग्य you है। greetings on behalf इसलिए of my हम precious wife and मेरी family पत्नी from और Church परिवार और Royaume in कलीसिया की तरफ Tonon-les-Bains, से मैं आपके France. अभिवादन Église La Lumière ले autour du आता हूँ। soir. Amen. Church, light in the evening time. कलीसिया Amen. Because आखिरी that's the समय का time we're उजाला ये living नाम in. है, क्योंकि इसी Amen. समय में So हम as जी the रहे हैं। inspiration was for Brother Samuel, let जैसे the कि भाई light of सामुएल के Christ जरिए से shine. प्रेरणा मिली थी कि Amen. परमेश्वर का Throughout the उजाले को world. So I greet हम the चमकाए saints सारे here विश्व भर में। all through the इसलिए internet. सभी May संतों God का richly जो bless यहाँ you. पर और You इंटरनेट पर know, है, it's a प्रभु आपको foretaste बहुत of ऐसे heaven. आशीष दे। ये एक जो है Amen. स्वर्ग There's की many एक people on the झलक है internet. We don't see them, but कि by इंटरनेट पर God इतने we लोग can हैं, लेकिन connect. हम उन्हें देखते नहीं हैं, Amen. लेकिन But we're धन्यवाद getting देते हैं कि हम ready जुड़ for पाते हैं the और हम most तैयार हो रहे wonderful young वो people's सबसे meeting. सबसे अच्छी जवानों की सभा के लिए हम तैयार हो रहे हैं। I was हालेलुया। expecting a shout at least from the elders. मैं बुजुर्गों से एक चिल्लाहट Amen. को Because that's अपेक्षा what कर I'm रहा था, getting ready क्योंकि for. मैं To be वहां पर उसी बात raptured के लिए in जा a रहा हूँ, moment, in a रैप्चर होने twinkling के of लिए। an eye, I shall be पलक के झपकते changed. ही मैं Amen. बदलने What a वाला हूँ। meeting it will क्या be. ही सभा वहां पर होगी। Hallelujah, hallelujah. So may हालेलुया, God richly हालेलुया। bless you. इसलिए प्रभु आपको बहुत Amen. ऐसे And आशीष as the दे। word is being spoken, the prophet और tells us जैसे we have कि to water
the word with our praise. और नबी बताते कि हमारे वचन को स्तुति के साथ पानी उसको देना है। You won't offend me if you praise God. यदि आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो आप मुझे ठोकर नहीं देते, लेकिन जब आप रिबका के बारे में बात करते हैं, जब वो सामर्थ को दर्शाता है और उसी सामर्थ ने इसहाक के पास फिर से लेकर आया, और जब हम वचन की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो बीज बढ़ने लगता है, तो उसको प्राथमिकता मिलती है, उसको प्राथमिकता मिलती है। इसलिए मैं आज शर्मिंदा नहीं हूँ प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करने के लिए। एक ऐसी ख्रिस्त विरोधी आत्मा है कि कलीसियाओं को बंद करे ताकि आपको शांत करे। नहीं नहीं नहीं, मेरे परमेश्वर मुझे ये नहीं बताता है। जिसके अंदर सांसें है, हर कोई परमेश्वर की स्तुति करे। बहुत सी बातें हैं हमारे पास आनंद करने के लिए। आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और ये पहली स्लाइड को आप देख सकते हैं। कुछ कोट्स को अनुवादक को लिए मैंने भेजा। अनुवादक प्रभु आपको आशीष दे, और निश्चित रूप से हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो हमारी आवाज है उस भाषा में, उस देश में। इसलिए प्रभु बहुत से उन्हें आशीष करे। जो भी हुआ है, बहनें काम कर रहे, भाई काम कर रहे, हर एक टेक्निकल टीम, हमारे हृदय की गहराई से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और सारी पौनाई के लिए। और हो सकता है कि पहली बार है हम मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेकिन हम पहले थे। जगत की नींव डालने से पहले हम एक साथ थे। इसलिए थोड़ा सा समय जो यहाँ पर हम गुजार रहे, लेकिन हम तैयार हो रहे अनंतता के लिए। आमीन। हम इस बात को भूल गए कि बेशुद्धि, आत्मिक बेशुद्धि थी। इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है, ताकि हमें याद दिलाए कि हम कौन है, और फिर से हमें अपने स्थान में लेकर आ सके। और सारी महिमा प्रभु को मिले। आमीन। यहाँ पर हम एक वातावरण को निर्माण करना चाह रहे हैं। आमीन। वो अपने लोगों की स्तुति में वास करता है। इसलिए जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो वो अपने लोगों की स्तुति में वास करता है। हालेलुया। इसीलिए मैं स्तुति करना, प्रशंसा करता हूँ। मैं भावनाओं की बात नहीं करता हूँ संतों, मैं बात करता हूँ जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आमीन। इसलिए हमारा रवैया दिखाता है कि हमें क्या मिलेगा और कितनी ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। आपका रवैया दिखाएगा कि आप कितने ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसीलिए जितना उकाब ऊंचाई पर जाता है, उतनी ऊंचाई तक हम जाए। यही तो प्रभु का वचन हमें बताता है। और इसलिए उसके बाद आप फिर से वही नहीं होंगे। इसलिए जब शैतान कभी आता है आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए, तब उससे कहिए मेरे पीछे हो जा शैतान, मेरे पीछे हो जा। प्रभु हमें आशीष दे। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ रहे हैं, मैं लेना चाहूंगा पहला वचन इब्रानियों की पुस्तक से, इब्रानियों उसका 10 अध्याय, उसका 19 और 20 पद। अब मैं अनुवादक के लिए कुछ समय देना चाहूंगा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का किया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर। और यदि आप यहाँ पर देखते हैं, यदि आप देखते हैं कि हियाव, इसका अर्थ होता है कि रिस्क उठाने के लिए तैयार होना। हो सकता है कि आप हो सकता है आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप मुझसे खींचे उस बात को, जोखिम उठाने के लिए तैयार होना। भाई माइकल ने यहाँ पर सैनिकों के बारे में बताया। क्या कभी आपने सैनिक को देखा है कि वो युद्ध भूमि में सो रहा है?
अगर वो ऐसा सोता है तो उस सैनिक को मैं बाहर निकालना चाहूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर की सेना में हूँ, हम सब उसकी सेना में हैं। हम यहाँ पर पिकनिक पर नहीं है, लेकिन हमें आदेश दिया है ताकि शैतान के राज्य को हम ढा दें। हालेलुया। इसीलिए जोखिम उठाने के लिए तैयार होना और आत्मविश्वास होना, साहस होना और कोई हिचकिचाहट नहीं। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर का वचन को आप सुनते जो आपसे बात कर रहा है, इसलिए आमीन कहने के लिए शर्मिंदा मत होइए। आमीन कहते ऐसा ही हो जब आपका मन कहता है कि ये तो पागलपन है, असंभव नहीं, लेकिन हर एक बातें संभव है उनके लिए जो विश्वास करते हैं। आमीन और आमीन। इसलिए आइए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय को लेते हैं, उसका 8वां अध्याय, 3 अध्याय इसका 8 पद आप कीजिएगा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम को इनकार नहीं किया। ओ, इस वचन में मैं अपने आप को पहचानने पाता हूँ, क्योंकि कमजोर कहता है कि मैं बलवंत हूँ। जब तक आप परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं, जब तक आप परमेश्वर के वचन का इनकार नहीं करते, वो यीशु के वचन का इनकार नहीं करते, तो डरिए मत, आपके सामने खुला द्वार रखा हुआ है। और आखिरी पद 2 पत्रस 1 अध्याय इसका 11वां पद, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कितने लोग इस वचन के अंदर अपने आप को पहचानने पाते हैं? क्योंकि इसी रीति से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आइए हम प्रार्थना करें के लिए अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, क्या ही सौभाग्य हमारे पास है प्रभु कि हम पवित्र स्थानों पर खड़े हैं। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में हूँ। इसलिए बिना कोई संदेह के बादल की हम जानते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। जहाँ पर दुल्हन सारे विश्व भर से खड़ी है, वहां पर चाहे उनके घर हो, उनके कार हो, वहां पर आप है। हम जानते पिता परमेश्वर की दुल्हन अब पूरे विश्व भर से एकत्रित हो रही है और हम तैयार हो रहे रैप्चर होने के लिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे मैं क्रूस के पीछे छुप जाता हूँ, तो आप इस बर्तन का पूरी रीति से अपने ताबा ले और वचन के सुनने वालों को आशीषित करे, ट्रांसलेटर को आशीषित करे, और वे उसी अभिषेक में हो प्रभु, ताकि वचन को प्रचार करने पाए और होने पाए। वहां पर बहुत बहुत गवाहियां निकलने पाए कि किस प्रकार से जीवन बदल गए, किस प्रकार से बीमार चंगे हो गए। क्योंकि भविष्यवक्ता ने हमें बताया कि जब वचन प्रचार किया जाता है, दुष्ट आत्माओं को तो भाग नहीं होता है। इसलिए वही आप परमेश्वर है आज की रात हमारे लिए। इसलिए मैं उसको संपूर्ण नियंत्रण इस सभा का लेता हूँ। भाई सैमुअल को आशीष कीजिए और सारी परिश्रम के लिए, और जो कलीसिया ने परिश्रम किया और जो दर्शन उनके पास है सारे विश्व भर की दुल्हन के लिए, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि 100 गुना प्राप्त करने पाए। और इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके अद्भुत नाम में, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। और कलीसिया ने कहा आमीन और आमीन। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर पर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के सभा संदेश के लिए संदेश शीर्षक है परमेश्वर स्पष्ट रूप से दृश्य में है। ये वर्तमान में होना है, वर्तमान काल में होना है। परमेश्वर क्या होगा न क्या था, लेकिन परमेश्वर इस वक्त अब स्पष्ट रूप में दृश्य में है। इसलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया था कि किस प्रकार से वो तंबू को बनाने के लिए कहा था। बाइबल के अंदर
कि सारी बातें उसके निर्देश अनुसार थी। और निर्गमन 26 की फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के वो पर्दा बनाना, परमेश्वर किस प्रकार से वो, और 23 में मैं एक नींव डालने की कोशिश कर रहा हूँ और उसे, उस पर्दे को और उस आंखड़ियों के सोने की हो, और ये परम पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में हो। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर एक पर्दा चाहता था परम पवित्र स्थान के बीच में। और जब परमेश्वर ने निर्देश दिए, वो निश्चित होना चाहता था कि जो महिमा है वो पर्दे के अंदर रहे। हम यहाँ पर देखेंगे इस बात को, इसलिए हम इस बात को समझ नहीं पाते कि परम पवित्र स्थान ये जो पर्दा था एक दरवाजे के रूप में काम कर रहा था। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? और इस पर्दे के पीछे शकीना महिमा थी। भविष्यद्वक्ता बताते हैं शकीना उजियाला इसे कहते हैं, उसे हेलो कहते हैं, वो एम्बर लाइट कहते हैं इसे। और इसी का एक मुख्य विषय है आज कि उजियाला। आमीन। और पहले राजा इसके 6 अध्याय में हम देखने पाते किस प्रकार से वो दर्शन स्थान को यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए बताया। सुलेमान का मंदिर भी उस प्रकार यहोवा के दिए हुए निर्देश अनुसार बनाना था। इसलिए यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20 हाथ की हो, इसके बताता है। और ये दर्शन स्थान जो है ये उस भवन का सबसे अंदर वाला स्थान था। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पर्दा जो है उसका लगभग 30 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और उसका आकार होना था। हम यहाँ पर छोटे पर्दे की बात नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर का एक उद्देश्य था इस बात को करने के पीछे। और इब्रानी 9 में हम देखते हैं, और घर जाकर आप पढ़ सकते हैं, और 9 अध्याय 2 से 8 में वहां पर वो बताते हैं कि पहले तंबू में दीवट रखे, फिर मेज भेंट की रोटियां रखी जिसको पवित्र स्थान कहलाता। और 7वें पद में, लेकिन दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक बार ही जाता था, बिना लहू के नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूलचूक के लिए चढ़ाता था। इससे पवित्र आत्मा यह दिखाता है जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं तब तक पवित्र स्थान का प्रकट नहीं हुआ था। इसका अर्थ को हम देखते हैं, इसका अर्थ होता है कि प्रकट होना, दिखाना, अपने आप को प्रकट करना। तो अब तक प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। परमेश्वर कभी गलतियां नहीं करता। परमेश्वर की पास एक योजना थी, वो जानता था कि हमें उद्धारकर्ता की जरूरत थी। परमेश्वर अंत के समय में, अंत के अंत में परमेश्वर जानता था कि हमें योजना की जरूरत है, कि वहां पर एक दुल्हन होगी जिसे फिर से पुण्य बहाली, वचन की पुण्य बहाली करनी थी दुल्हन के लिए। इसलिए परमेश्वर फिर से स्पष्ट रूप से दृश्य में दिखाई दे सके। आमीन और आमीन। इसलिए इस पर्दे ने शकीना महिमा को अंदर छिपा कर रखा था। और हम देखते हैं कि बीमारियां भी बाइबल के अंदर उल्लेख नहीं किया है, लेकिन वो 1 हाथ लंबाई जितनी थी। और कहते थे कि घोड़े भी उस पर्दे को फाड़ नहीं सकते थे। 1 हाथ जितनी उसकी ओ कितना महान हमारा परमेश्वर है। मुझसे मेरे साथ गाइए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो आज की रात भी वो महान है संतों। आमीन और आमीन। और मार्क इसे 15 अध्याय में और 38 में मंदिर का पर्दा कैसे ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़े हो गया। और इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। जो हमने पढ़ा कि महायाजक केवल एक बार पर्दे के भीतर जाया करता था, ऐसे ही अनौपचारिक रीति से नहीं जा सकता था। भविष्यद्वक्ता बताते हैं
इससे पहले कि वो पर्दे के अंदर प्रवेश करे, उसे कपड़े उतारकर सही कपड़े पहनने पड़ते थे। यही तो चर्च को स्थिति है कि उसे क्या जरूरत है कि वो सारी धार्मिकता के कपड़े जो उसने पहने, जो छोटे छोटे जो हमें रोकते हैं, और इस सारे तर्क वाले पर्दे को हटाए और परमेश्वर की धार्मिकता को हम पहन ले और अंदर जाने के लिए तैयार हो जाए। और वो मनुष्य लेपालकपन में नबी कहते हैं कि उसे एक तरीके से चलना पड़ता था कि जब वो चलता था, जब अपने पैरों को हिलाता था, भाई सैमुअल, ये केवल महायाजक के लिए था, और मैं आपके लिए इसको लाता हूँ। और उस व्यक्ति को एक तरीके से चलना पड़ता था, जब वो चलता, अपने पैरों को हिलाता और इस प्रकार से चलता, और हर एक कदम ऐसे रखता था, और वे पवित्र पवित्र प्रभु के लिए पवित्र बचते हुए रहते थे। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में हम कैसे आते हैं, हमारा रवैया कैसा है, वचन को हम कैसे ग्रहण करते हैं, क्या हमारा जीवन पवित्र पवित्र परमेश्वर के लिए पवित्र ऐसा कहता है। आमीन। जब यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, तो उसने उस पर्दे को ऊपर से नीचे फाड़ दिया, इसलिए ताकि आप सिर्फ महायाजक ही नहीं, लेकिन जो कोई चाहे वो उस शकीना महिमा में आ सकता है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के द्वारा, और एक सच्ची पेंटिकोस्ट की सहभागिता में प्रवेश कर सकता है। वो महिमा हो। आप भाई डेविड, आप बहुत ही पेंटिकोस्टल है, आप कहेंगे, लेकिन पेंटिकोस्टल कोई संस्थागत कलीसिया नहीं, ये तो एक अनुभव है। और परमेश्वर फिर से हमें उस स्थान में, उस रियल पेंटिकोस्ट में लाना चाहता है। हालेलुया। वास्तविकता पेंटिकोस्ट में। आमीन और आमीन, आमीन और आमीन। मैं चिल्लाने के लिए क्यों डरूं? आमीन, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु की स्तुति कर रहा हूँ। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ इससे पहले कि कोई नतीजे को देख लूं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी भी असफल नहीं किया है, मुझे हालेलुया कभी विफल होने नहीं दिया। आमीन और आमीन, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए उसने पर्दे को दो भाग में फाड़ दिया ताकि हम उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं, और परमेश्वर के साथ एक सहभागिता और एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, संबंध में आ सकते हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर एक ऐसा गहरा संबंध है, एक बातचीत है। मैं इस बात को थोड़ा बताना चाहूंगा। मेरे और मेरी पत्नी के बीच में जो संबंध है, एक संबंध है, क्योंकि यदि कोई संबंध नहीं होगा तो इसका अर्थ है कि आप कैसा जीवन बिता रहे। पतियों, अपने पत्नी से ऐसे प्रेम कीजिए जैसे परमेश्वर ने अपने दुल्हन से प्रेम किया, और यही परमेश्वर चाहता है। इसलिए उसने बीमारी के पर्दे को और उस बड़े पर्दे को, जो चिंता का पर्दा है और डर का पर्दा है, उसने हर किसी को नीचे ऊपर से नीचे फाड़ दिया, उस पर्दे को फाड़ दिया। दुल्हन अब मत डरना। आमीन और आमीन। और वो ऊपर चढ़ गया, और उस हर एक नामों से ऊपर जो नाम है वो नाम उसे मिला, ताकि यीशु मसीह के नाम पर हर एक दुष्ट आत्मा को भागना है। यीशु मसीह के नाम पर हर एक घुटना टिका जाएगा। हालेलुया। आमीन और आमीन। और पर्दे, पाप का पर्दा, बीमारी का पर्दा, जो हर एक पर्दा जो परमेश्वर से मनुष्य को दूर करता था, वो हर एक पर्दे को फाड़ दिया गया। हालेलुया। हम अनुग्रह के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा सकता हूँ, मुझे यही तक रहे। हालेलुया। पर्दे को तो फाड़ दिया गया है मेरे भाई। वो पर्दा जो जिसने मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखा था, परमेश्वर ने उस पर्दे को फाड़ दिया, उसको दो भाग में तोड़ दिया। अब हमारे पास, अब हम परमेश्वर को स्पष्ट रूप से दृश्य में देख पाते। परमेश्वर की महिमा हो। उसने अपने अनुग्रह से इस बात को किया, मेरे और आपके लिए किया। आमीन और आमीन, आमीन। और वो पर्दा जो दो भाग में फाड़ दिया गया, और आप सुनिएगा, और उसने हर एक दुष्ट आत्मा को भगा दिया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं?
उसने हर एक दुष्ट आत्मा को भगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। Church, कलीसिया, now time, अब ये समय है, but मैं नबी को कोट कर रहा हूं कि दुल्हन अपने स्थान को जान ले, because in plain view, क्योंकि वो in दृश्य, other words, clear view, in other वो words, साफ bright रूप view, में, in other words, दृश्य रूप में दिखाई दे रहा है is shining कि with मेरा the उजाला अब चमक रहा है restoration of the words as a वचन की prophet पूर्ण does बहाली the करने के full द्वारा। restoration of the power. और नबी बताते हैं कि इसके साथ पूर्ण सामर्थ की भी पूर्ण बहाली होती है। और ये हम बहुत ही सौभाग्यशाली संत है। उसने हर एक दुष्ट आत्मा को भगाया और उसने हमारे लिए उजाला महिमा से भेज दिया, खोजने वाला उजाला। और मैं यहाँ पर कुछ न्यू को डाल रहा हूँ, एक ऐसी उजाले की रोशनी जो हमारे ऊपर प्रक्षेपित की गई है। An extremely luminous source with a mirror reflector to project the powerful beam of light. एक खोजने वाला प्रकाश जो परमेश्वर की ओर से दुल्हन के लिए भेजा गया है। My God. So मेरे he made a परमेश्वर, searchlight. इसलिए उसने खोजने वाला एक उजाला भेजा, महिमा से भेजा, Make sure ताकि वो सुनिश्चित करना चाहता था would कि find its way. हम अपना रास्ता There's खोज one सके। GPS. That's एक ही God's जीपीएस है positioning system. जो परमेश्वर की And that's जीपीएस his है, word. और वो उसका वचन है। Rightly position his उसने bride. अपने दुल्हन को सही स्थान पर रखा है और उसने सुनिश्चित किया कि उसका उजाला दुल्हन के अंदर साफ रीति से चमके, ताकि दुल्हन उसकी आवाज को सुन सके और वो जान सके कि वो कौन है और वो कौन है, दुल्हा कौन है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए हमारा जो सही बलिदान जो कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने पर्दे को दो भाग कर दिया और उसने अपने लहू को लेकर अंदर प्रवेश किया, ताकि जो कोई चाहे वो आए, शकीना महिमा में आए, परमेश्वर की स्तुति महिमा उपस्थिति में आए और पेंटिकोस की सामर्थ से भर जाए। जैसे कि पर्दा दो भाग होने के बाद, फाड़ने के बाद, जैसे उन लोगों ने किया था। इसलिए शकीना महिमा में अब यहाँ पर द्वेष के लिए कोई जगह नहीं है, जल ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं है, और फ्रस्ट्रेशन के लिए कोई जगह नहीं है, डिप्रेशन के लिए कोई जगह नहीं है, उत्पीड़ा के लिए कोई जगह नहीं, कोई ऐसी बातों के लिए जगह नहीं है जो नरक से आती है, क्योंकि वहां जहां कहीं उजाला है वहां पर अंधकार हो ही नहीं सकता। आमीन कलीसिया। इसलिए भविष्यवक्ता कहते हैं, जैसे आप परम पवित्र स्थान में जाते हैं, हम जानते हैं कि वचन वहां पर था, वाचा का संदूक वहां पर था, और उन्होंने एक सूखी लकड़ी को वहां पर रखा। और सुनिए मुझे, और एक सूखी लकड़ी को फूल लगे, फल लगे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में और शकीना महिमा में रहने के कारण। और सुनिए, और भविष्यवक्ता कहते हैं, आमीन हालेलुया, वो कहते हैं, और परमेश्वर की आत्मा में आइए और उसके बाद कार्य करें और फिर देखिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है। वो उस दुनिया संसार के अंदर वे उस खेलकूद में जाते हैं और वो बहुत ही उत्तेजित होते हैं, वो उस आत्मा में आते हैं, वो वहां पर एक ऐसे बैठते नहीं है एक सूखी लकड़ियों की तरह उस गेम के अंदर। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? क्या यहाँ पर कोई अपने आप को एक सूखी लकड़ी के द्वारा पहचाने जाना चाहता है? यदि हम शकीना महिमा में है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ हम हैं, हम हमेशा एक सूखी लकड़ी नहीं रह सकते, हमें तो फल को पैदा करना होगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर की महिमा में है, आप ऐसे नहीं बैठ सकते। भाई सैमुअल, नहीं, वो मेरी स्तुति और प्रशंसा की योग्य है। हालेलुया, आमीन और आमीन। भविष्यवक्ता कहते हैं कि जाकर परमेश्वर आराधना की आत्मा में आइए। मसीह व्यक्ति को तो हमेशा परमेश्वर के आनंद में आनंदित होना है, जैसे कि संसार उनकी अभिलाषाओं में आनंद करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फुटबॉल जो है और कनाडा का हॉकी हो सकता है, स्प्रिंग बॉक्स, ऐसे ये गेम इनकी पसंदीदा गेम है। और हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रीय आत्मा होती है और वो उस आत्मा में आते हैं, और बुजुर्ग और जवान, पुरुष और स्त्री उस आत्मा में आते हैं
और जब वो उनकी राष्ट्रीय टीम जीतती है तो उस आत्मा में वो आते हैं। मुझे मत बताइए कि ये सच नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कलीसिया के अंदर लोग बैठते हैं, आमीन, सर झुके हुए, और जब गेम होती है तो कूद कर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हाँ हमने स्कोर किया। और मैं आपको उस विषय में बात कर रहा हूँ जो पर्दा जो मेरे और आपके लिए फाड़ दिया गया है, जो मेरे लिए फाड़ दिया गया है। हालेलुया। और इसलिए हमें उतने ही आनंदित होना है, आनंदित होकर और इतने प्रोत्साहित होकर जो कभी रोका नहीं जा सकता। ओ प्रभु की स्तुति हो। कोई भी रुकावट के बगैर कोई मुझे यहाँ पर रोक नहीं सकता। मैं तो यहाँ दौड़ूंगा। आप जानते हैं क्यों? जहाँ कहीं भी परमेश्वर की आत्मा है वहां पर शुद्धता है, और ये कोई भावना नहीं है, ये तो वास्तविकता है। यदि ये सूखी लकड़ी फल को ला सकती है एक रात में, तो आपके विषय में क्या, जो परमेश्वर का बीज है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और वेबस्टर बताते हैं कि वो महान आनंद सर्वोच्च और अधिकता से, और अब मैं नबी को कोट कर रहा हूं। भाई ब्रैनम कहते ये शकीना महिमा एक विश्वासी पर प्रकट करती है कि वो कल, आज और युगानुग एक सा है। आमीन। इसलिए जब आप उसमें शकीना महिमा में प्रवेश करते हैं, उस उजाले में प्रवेश करते हैं, उस हेलो के अंदर, उस शकीना महिमा में, उसकी उपस्थिति की वो कौन है, और आमीन, आपको प्रकाशन मिलता है तब कि वो सरी का है, वो बदलता नहीं है, वो हमेशा एक सा है। इसलिए उसने उस पर्दे को फाड़ दिया अपने लहू को बहाने के द्वारा, और हमारे लिए रास्ता बनाया ताकि आप और हम उस शकीना महिमा में आ सकते हैं। वही वो रास्ता है, वही वो सत्य है, वही मार्ग है, वही उजाला है, वही जीवन है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह यहाँ पर है, जैसे शालोम संदेश के अंदर नबी बताते हैं। हालेलुया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? शालोम, शांति। इसलिए आप थके हुए मत रहिए, परमेश्वर यहाँ पर है, उसकी महान ज्योति हमारे पास आई है। आमीन, आमीन। आपको आनंद के विषय में बात करना चाहिए। ओ परमेश्वर की महिमा हो। जब मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना तो मेरे अंदर कुछ तो कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि सत्य है। आमीन। भाई फिनी, मिस्टर फिनी, और जब उनकी सभाएं हो रही थी और वो कोशिश कर रहे थे, और वो साउंड सिस्टम को चेक कर रहे थे, और उसने कहा पश्चाताप करो या, और एक ऐसी अभिषेक उनकी आवाज में थी कि बालकनी से लोग गिर गए। जब उन्होंने प्रचार किया, एक ऐसी सामर्थ की आवाज के साथ उन्होंने प्रचार किया, और एक ऐसी जगह पर नबी बताते हैं कि जो काम कर रहे थे, जो अपनी टोकरियां पकड़कर चल रहे थे, वे अपने रास्ते पर गिर गए और अनुग्रह के लिए चिल्ला रहे थे परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। ये वो महान श्रीमान फिनी थे। तो दुल्हन के विषय में आप क्या? भविष्यवक्ता कहते हैं कि लोग, मनुष्य अपने शरीर में इतने दृढ़ता से बैठे, ऐसा न हो कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को पहचाने न पाए। हो सकता है कि लोग कलीसिया में बैठते हैं और वो इसे चूक जाते हैं। भाई ब्रैनम भी कहते हैं कि मैं वचन का प्रचार कर रहा हूँ, और वे पकड़ भी नहीं पाते कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए नहीं था, ये तो हमारे लिए था। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आमीन, हमें प्रत्युत्तर देना है। ये ब्रदर सैमुअल के लिए नहीं है, भाई डेविड के लिए नहीं है, भाई फेनन, भाई माइक और ब्रदर रॉन के लिए, इनके लिए नहीं है, ये तो परमेश्वर के लिए है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो। आमीन। इसलिए हम देखते हैं ये शकीना महिमा, ये आग का खंबा, ये उजाले के विषय में कुछ तो विशेष बात है। हमने वचनों को बताया कि पूरे पृथ्वी पर अंधकार है, लेकिन महिमा, परमेश्वर का उजाला आपके ऊपर चमकेगा।
और सबसे अंधकार के समय जगह पर, सबसे अंधेरे जगह में आपको बड़े उजाले की नहीं, लेकिन एक छोटा सा भी उजाला वो अंधकार को, सारे अंधकार को दूर करता है। शैतान बहुत बड़ा और बहुत गहरा और अंधेरा हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा उजाला उसे दूर कर सकता है। आमीन आमीन। और आग का खंभा भी जो लोगों के आगे आगे चल रहा था जब वे मिस्र से बाहर निकले, और वहां पर एक आग का खंभा था, रात के समय और दिन के समय बादल था, और वो शत्रु और अपने लोगों के बीच में खड़ा था। भविष्यवक्ता कहते हैं वो आज भी वैसा ही है। परमेश्वर अपने लोगों के पीछे खड़ा है। आमीन और आमीन। इसलिए छोटी झुंड, डर मत। दानियल भी, यदि हम दानियल को देखते हैं किस प्रकार से वो मूर्ति के सामने नहीं झुका, और शैतान इस लौदीकिया युग के अंदर शैतान चाहेगा कि आप झुक जाए, कि आप जवान बच्चे, बुजुर्ग लोग, आप इसको हार मत मानिए, आप नीचे झुके मत। शैतान बहुत धूर्त है और थोड़ा 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 करके आपके पीछे, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद आप पूरे रूप से संसार के अंदर अपने आप को पाते हैं। वो बहुत ही धूर्त है, और लोगों को लगा कि भाई ब्रैनम हमें छोड़कर चले गए और सब कुछ अब खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आग का खंबा हमें अब तक छोड़कर नहीं गया है। आग का खंबा ने हमें छोड़ा नहीं है। आमीन। आपको पता है कि उस उजाले के विषय में कुछ तो है, आग के विषय में कुछ तो विशेष बात है। आमीन आमीन। दानियल वो झुका नहीं। उन्होंने कहा जो तू कर रहा है, अगर वो करते रहेगा, वो क्या कर रहा था? परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आराधना कर रहा था। हालेलुया। वो जिस संसार के अंदर था वो उससे प्रभावित नहीं था, वो तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अड़ी खड़ा था। क्या मुझे सुन रहे हैं? क्योंकि लोग मुझे बताते हैं भाई जब आपने शुरू किया था तो आपने जब ये सब विश्वास किया तो एक अलग समय था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कोई गलतियां नहीं करता है, लेकिन लौदीकिया का प्रभाव आप पर कभी ना हो। लौदीकिया है गुनगुना, और हम गुनगुने चिकनी समय न बैठे, हम सूखे लकड़ियों की तरह न बैठे। नहीं, मैं तो परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ, मैं तो उस वातावरण को निर्मित करना चाहता हूँ। आमीन आमीन आमीन। इसलिए दानियल परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहा। मैं जानता हूँ मैं किसकी विश्वास करता हूँ। दानियल, मैं तुझे लाएगा शेम की मान में डालूंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आमीन आमीन। तो क्या? भाई डेविड जो अफ्रीका में रहते हैं वो कह सकते, मैं जब वहां पर था मैंने सिंह की दहाड़ को सुना। मैं अब जानता हूं कि क्यों सब कुछ शांत हो जाते हैं, मैंने उसकी दहाड़ को सुनी है। इसलिए वे सिंह, और उन्हें भूखा रखा था इतने दिन। सिंह, और उन्होंने कहा आप सिंहों को क्या आपके लिए विशेष मांस भेज रहा हूं। मैं यहाँ पर एक तस्वीर को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने दानियल को शेर की मान में डाला, कौन दृश्य पर आया? आमीन। वो उजाला शेरियों की मान में आया, आग का खंबा नीचे उतर आया। हालेलुया। वो सिंह जो फाड़ खाने वाले, लेकिन भाई ब्रैनम कहते हैं कि सिंह आग से डरते हैं। हालेलुया। और शैतान भी आग से डरता है। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग जलती रहती है, शैतान को तो भागना ही है। हालेलुया आमीन। इसलिए आग का खंबा अब बदल गया। आप जब शकीना महिमा है में, तो वो आपको बदलता है, आपकी सूखी लकड़ी को, और आप में फल लगते हैं, और शकीना महिमा आपको बदल देती है। और उसने उस जंगली जानवरों को बदल दिया एक छोटे से उस बिल्ली के पिल्लों में। कितना महान हमारा परमेश्वर है। दानियल, उसका एक भोज हो रहा था, जो वो एक ऐसे उसका तकिया बन गया, उसकी गद्दी बन गया, और वो सो रहा था वहां पर। हालेलुया। और आप शैतान को कहां पर रखना चाहते हैं?
ओ संतो, To your feet. आपने कदमों तले उसे रखिए, वहीं पर उसका स्थान है। आमेन, आमेन, आमेन। और अब समय है कि हर कोई, केवल पास्टर नहीं, लेकिन भाई और बहनें परमेश्वर को अपने वचन पर उसे ले लिए। Hallelujah. आमेन, परमेश्वर को उसके वचन पर लीजिए। आमीन और आमीन। इसलिए तो नबी ने कहा है कि परमेश्वर के वचन को उसकी सरलता में लेना है, ताकि इससे दिखा सके कि हम यीशु मसीह का लाजवाब एक सा है। ये तो सरल और साधारण हृदय की जरूरत है जो प्रभु यीशु मसीह को वर्तमान में ला सकता है। प्रभु हमें एक ऐसे नम्रता का हृदय दे। आइए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की सरलता को ले। हम जानते हैं जब उन्होंने इस सुलेमान के मंदिर को जब अर्पण किया, तब किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा ने मंदिर को भर दिया। इसलिए जब हम यहाँ पर हैं तो क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, ताकि जीवित परमेश्वर की हम आराधना कर सके और वो हमें उसकी आत्मा से भर दे। और तब हम उसकी शकीना महिमा को देख सकते कि किस प्रकार से वो जीवित परमेश्वर की कलीसिया में फिर से आ रही है, जो मानवीय देह को बदलने की सामर्थ्य रखती है। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जो यहाँ पर है और दूर है। किस प्रकार से और ऐसा महान प्रताप में वरदान को हम कैसे इनकार कर सकते हैं? और नबी बताते हैं, और परमेश्वर ने जो हमें सौभाग्य दिया उससे मीलों दूर हम रह रहे हैं, जो सौभाग्य उसने हमें प्रदान किया। जब वो बना स्वर्ग का परमेश्वर, वो नीचे उतर कर आया, जैसे वो सीने पर्वत पर उतर आया था, और वो पवित्र आग से, और उसने उस पवित्र आग से उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। इसलिए मैंने आपको बताया कि कितना ऊंचा था, कितना चौड़ा था, ताकि हम मनुष्य रीति से इसे देख सकते थे कि कोई व्यक्ति इसे नहीं कर सकता था। और ये पर्दा जो है ऊपर से नीचे तक फटा था। हालेलुया। और ये परमेश्वर की ओर से ऊपर से आग भेजी गई थी, जो कि मंदिर के पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। और उसने उस मंदिर के खिड़की से देखा कलवरी क्रूस की ओर, तो वहां पर परमेश्वर स्पष्ट रूप से दृश्य में दिखाई दे रहा था। और तब वो कहते हैं कि परमेश्वर को बेपर्दा करने में, यदि कोई व्यक्ति उस पर्दे में से होकर चलता था तो उसकी मौत थी, लेकिन अब उस पर्दे में से न जाने से उसकी मौत है। संतों, मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं, उस पर्दे के भीतर चले जाइए। और भविष्य तक बताते हैं कि जब आपके पीछे वो पर्दा लग जाता है तो संसार आपसे हट जाता है और संसार दृश्य में नहीं होता, और फिर आप परमेश्वर के अंदर इतने गहरे, मसीह के अंदर गहरे चले जाते हैं, ताकि आप कोई संसार की बातों को नहीं जान पाते। वो आप और मेरे बारे में बात कर रहा है वहां पर। लेकिन जब तक जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपने वचन पर न लेता है, तब तक वो सिर्फ वचन है। बहुत से लोग इसे कोट कर सकते हैं, बहुत से लोग बाइबल को जानते हैं और संदेश को जानते हैं, उनके मुख में है, वो उनके पास ज्ञान है। अब ये सिर का ज्ञान न हो, लेकिन ये हमारे प्राण में अंदर होना चाहिए। एक व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन आपके पास होना चाहिए। महिमा हो। आमीन। और अब मृत्यु है पर्दे के अंदर न जाने से, इसीलिए हम परमेश्वर को उसकी सामर्थ्य में देखते हैं। संपूर्ण दया का सिंहासन अब स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, कोई भी देख सकता है, और वो पर्दा फट गया है। अब परमेश्वर की महिमा हो। और अब सुनिए, और अब वो दृश्य रूप में है, और पूर्ण रूप से दृश्य रूप में है, ताकि अपने वचन से वो प्रकट कर सके। हमें परमेश्वर आप उनको दया का सिंहासन दिखाना चाहता था। परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था कि वो कौन है, और परमेश्वर ने अपने आप को स्पष्ट रूप से दिखाया। वो क्या था? ये तो यीशु मसीह था जो कलवरी क्रूस पर लटका हुआ था, वो जो दया का सिंहासन था। और उस पर्दे ने हमें परमेश्वर के हर एक प्रतिज्ञा से दूर रखा था। राइट। लेकिन कितना मैं धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर नीचे उतरा है ताकि मेरा दाम चुकाए, हमारा दाम चुकाए। और वो नीचे आया ताकि सुनिश्चित करे कि पर्दा फट चुका है, ताकि हम उसे स्पष्ट रूप से देख सके। आमीन।
और इफिस 2:13 में कहता है कि अब मसीह यीशु में जो दूर थे आप उस नजदीक किए गए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, क्योंकि वो हमारी शांति है, जिसने लहू के द्वारा हम निकट आए, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने वो बिछवाई की दीवार को ढा दिया है। परमेश्वर ने अपने ही लहू को लिया और परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया ताकि आपको और मुझे छुटकारा दे सके, और वो बिछवाई की दीवार को नीचे ढा दिया ताकि आप अपने आप उस शकीना महिमा में आ सकते हैं उसके साथ, और परमेश्वर की सारी आशीषों के नीचे रह सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप उस जुबली के विषय में बात करना चाहेंगे? अब वो समय है जुबली, यानी कि आपके पास वो जुबली होनी चाहिए। मैं आप निरंतरता में आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं जीवन के वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और हमारे पास, और हम डरते हैं परमेश्वर को उसके वचन पर लेने के लिए। हमारे पास ऐसे संसाधन है, अप्रयुक्त संसाधन है, और लोग आज संसाधनों की खोज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स और सारे ऐसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर संसार संसाधन को खोजने की कोशिश कर रहा है, जिसको कि काला सोना कहते हैं, पेट्रोल है और गोल्ड, सोना और हीरा, और ये सारे संसाधन को खोज कर रहे हैं ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब परमेश्वर दुल्हन को बताना चाहता है कि आपके पास अप्रयुक्त संसाधन अभी भी है। हालेलुया हालेलुया, क्या ही बात है। आप, ये समय है कि ये अप्रयुक्त संसाधन को हम खोजें। जब आप उससे संपर्क हो जाता है और जब आप चार्ज हो जाते हैं शकीना महिमा के द्वारा, हालेलुया, तो आप फिर से वैसे नहीं रहेंगे। आप अधिक और अधिक और अधिक उसकी महिमा में जाएंगे। इसलिए बाइबल बताती है, नबी बताती, और एक बार हम भर जाते हैं और उसके बाद फिर से भरना होता है। हालेलुया आमीन और आमीन। परमेश्वर के पास पेंटिकोस्टल आशीषें सारे आसमान में है, जैसे कि परमेश्वर के दास ने कहा कि इसकी आंखों को खोल, ताकि जो हमारे विरोध में उससे ज्यादा हमारे साथ है। परमेश्वर हमारी आंखों को खोल ताकि हम परमेश्वर को दृश्य रूप में देख सके, हम प्रकट किए हुए वचन को देख सके। हालेलुया आमीन और आमीन। वो सारे अप्रयुक्त संसाधन जो उसकी भलाई के, आइए हम उसे जाकर ले ले। जो कोई चाहे वो आए और बिना दाम बिना मोल के इसे मुफ्त में पी ले। हमारे पास अप्रयुक्त संसाधन है परमेश्वर की सारी आशीषों की। आप सुनिए ध्यान से, जो कि लिमिटेड नहीं है, लेकिन वो अनलिमिटेड है। हालेलुया, सीमित नहीं है। इसलिए जब आप कलीसिया में आते हैं और आपने छुटकारे को ग्रहण करते, अपनी चंगाई को ग्रहण करते, अपनी आशीषों को ग्रहण करते, तो ये मत सोचिए कि आपने स्वर्ग को खाली कर दिया। हमें, और ये मत सोचिए कि अभी कोई और बचा नहीं है। लेकिन ये रवैया है कोई किसी मसीहों का जो कलीसिया में आते हैं इस प्रकार से। ये असीमित है, इसलिए क्यों हम इससे दूर है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। परमेश्वर तो शरीका है, वो आज भी वही है। आमीन। इसलिए भाई ब्रैनम कहते, वो जेट प्लेन के बारे में बताते। अब इस कहानी को जानते, आप जानते कि किस प्रकार से वो जब वो तेज चलता है और ऐसे लगता है कि आप उसकी हवा से वो उड़ जाएगा, और वो जो ध्वनि अवरोध होता है उसको चीरते हुए आगे जाता है। लेकिन जब वो ध्वनि अवरोध के आगे जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है, उसकी गति होती है, अब असीमित होती है। और इसीलिए कलीसिया जो आज रात को यहाँ पर बैठी है, आप कोशिश कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे, और परमेश्वर आपको अपनी ओर खींच रहा है और आपको चीजों को दिखा रहा है। और यदि आप उस पाप अवरोध को पार यदि करेंगे, तब आप असीमित संसाधनों में जाएंगे,
और एक बड़ी बेदारी सारे देश में होगी, और आइए हम परमेश्वर की सेवा करें। आमीन। The opening of the word. वचन का खुलासा Revival. ये दुल्हन की बेदारी है। आमीन। How many have a real revival? इसीलिए किसके पास एक सच्ची बेदारी है? Not something that starts. एक बेदारी वो नहीं है जो एक दिन के लिए शुरू होती है, क्योंकि वो कहते हैं वो महिमा से महिमा तक के लिए है। आमीन। इसलिए जितना मैं उसके साथ और बात करता हूँ और चलता हूँ और एक अच्छे संबंध उसके साथ है, तो ये महिमा से महिमा तक है, और मेरी बेदारी और वो आगे आगे बढ़ता ही रहता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। Non-limited revival. और एक असीमित बेदारी। हालेलुया। We are the actors. I don't want you to play now, huh? But I'm quoting अब- the prophet again. अब मैं नबी को कोट कर रहा हूँ, हम एक्टर है That have यहाँ पर, to act जिसको according to the word of वचन God. पर कार्य करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। आमीन। अभिनय नहीं करना है, Will be a bride. लेकिन वचन के अनुसार कार्य करना है, Write another book of Acts behind. क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने कहा कि दुल्हन अपने पीछे फिर से प्रेरितों की पुस्तक को लिखेगी। वो पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है दुल्हन के अंदर है। आमीन। इसलिए वो नीचे आए, और अब वो दया का सिंहासन स्पष्ट रूप में लटक रहा था, लेकिन वो एक ऐसे एक लोगों की राय के तले थे कि लोगों की राय क्या है, कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं। मैं क्या सोचता हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। आमीन। 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 और इसलिए पवित्र आत्मा जो आखिरी दिन में हमारे पास आया और पर्दे को फाड़ दिया गया, और बहुत से लोग अपनी रीति रिवाज को लेकर चलते, इसीलिए वे इस अद्भुत आनंद और शांति को देख नहीं पाते। क्या आपने किसी को अद्भुत आनंद को एक निराशाजनक चेहरे में देखा है? मैं बच्चों से प्रेम करता हूँ, जब उनका बर्थडे आता है तो आप देख सकते हैं कितने आनंदित होते हैं, और हमें बच्चों के समान होना है। आमीन। क्योंकि मैं परमेश्वर से कुछ पाने वाला हूँ, मैं उसके भवन में जा रहा हूँ चिल्लाते हुए आनंद के साथ, आराधना के साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक दिन में मैं उसे उस भवन में मिलने वाला हूँ। आमीन। हालेलुया। लेकिन उन्होंने अपनी परंपराओं के द्वारा परमेश्वर के वचन को प्रभाव रहित किया है। आमीन। बच्चों के समान बनिए, और परमेश्वर के वचन में अद्भुत आनंद को पाइए, और ये आनंद जो मुझे मिला ये संसार ने नहीं दिया, और संसार इसे छीन नहीं सकता। ये पवित्र आत्मा जो मुझ में है संसार ने मुझे नहीं दिया, और न संसार मुझसे छीन सकता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। 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 परमेश्वर की स्तुति। अद्भुत आनंद और शांति जो कलीसिया के पास है। आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि सारी बातें संभव है उनके लिए जो विश्वास करते हैं। उस यीशु मसीह की छोटी दुल्हन, हम अंत समय के अंत में रहते हैं। आप कोई युग नहीं है, और कोई भविष्यवक्ता आने वाला नहीं है, कोई संदेशवाहक नहीं है। आमीन। यस यस ब्रदर। आमीन। मुझे नहीं पता मैंने कब शुरुआत किया है। कोई और युग नहीं है, कोई और पीढ़ी नहीं है, कोई और संदेशवाहक नहीं है। मुझे बाइबल में दिखाइए। आमीन। आमीन। वो जो दीवटों के बीच में खड़ा था, जो दीवटों को 7 हाथ में लेकर खड़ा था, उसने 7 युगों को देखा। हाँ, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते कि हम अंत में हैं। परमेश्वर कभी गलतियां नहीं करता। आमीन। इसलिए उसने हमारे लिए भविष्यवक्ता संदेशवाहक को भेजा, क्योंकि उसने कहा मैं पुण्य बहाली करूंगा। आमीन। आमीन। उसने हमारे लिए एक संदेश दिया, सारे भेद खुल चुके हैं, मोहरें तोड़ी गई है। क्या ही सौभाग्यशाली लोग हम हैं। आमीन। परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करता है ताकि हम उससे स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, दृश्य रूप में। आमीन। क्या वो कौन है और मैं कौन हूँ। मोहरों का खुलासा क्या था?
मसीह का प्रकटीकरण, मसीह को प्रकट करना, और दुल्हन मसीह का भाग है, उसका भाग है। इसलिए उसके जो विचार थे, जो गुण उसके अंदर थे, वो अपने आप को प्रकट करना चाहता था। इसलिए दुल्हन होगी जिसके अंदर ना झुर्रियां होगी ना दाग होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। उसने इस्राएल को चुना, लेकिन वे पीछे चले गए, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए उसने हमारे लिए समय दिया। आप नबी कहते कि थोड़ा सा समय, सीमित समय, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं सबसे महिमा में समय में जिंदा हूँ। जब रैप्चर होने वाला है, जब देह का परिवर्तन होने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया। समय और अनंतता अब एक होने वाले हैं। आमीन। भाई ब्रैनम कहते हैं और हम स्वर्गदूतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इस वक्त, आज रात यहाँ पर संतो, इसी वक्त यहाँ पर, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना हमारे लिए है। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन, आमीन। उस पर्दे ने क्या छिपा कर रखा था? पर्दे ने वचन को छिपा कर रखा था। मैं केवल प्रॉफिट को कोट कर रहा हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। वो कहते हैं एक ऐसे आखिरी दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर कहता है, कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। आमीन। सुनिएगा, शैतान अपने कान को खोल दे, सारे नरक की दुष्ट आत्माएं अपने कानों को खोल दे। जहां कहीं भी परमेश्वर का, हर एक देश में जहां कहीं परमेश्वर का वचन जाता है, शैतान को इसे ध्यानपूर्वक और सुनना है। कोई भी चीज इसे रोक नहीं सकती। अंत के दिनों में सांझ के समय उजाला होगा। ये काम जो मैं करता हूँ, ये तुम भी करोगे। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कितने मोहर बंद इसे आप करें, लेकिन परमेश्वर हर एक मोहर को तोड़ेगा। आमीन, 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 हालेलुया। उसने उस कब्र की मोहर को तोड़ा, उसने नरक की मोहर को तोड़ा, उसने मृत्यु की मोहर को तोड़ा, कब्र की मृत्यु को तोड़ा, और हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो गया और विजय पाया उस कब्र पर, मृत्यु पर और अधोलोक पर, और हर एक मनुष्य निर्मित जो चीज थी, उस सभी पर उसने विजय पाया। हर एक मनुष्य निर्मित चीज पर उसने जय पाया, हर एक मनुष्य निर्मित थियोलॉजी पर। इसलिए हम किसी व्यक्ति की ओर नहीं ध्यान देखते, कोई भी क्यों ना हो। हम जानते 5 प्रकार की सेवकाई है। हम इफिस को कोट करते कि संतों की सिद्धता के लिए, लेकिन केवल एक ही बात वो कर सकते, यदि एक सच्ची 5 प्रकार की कलीसिया है, वो केवल यीशु मसीह की ओर केंद्रित करेगी। आमीन, आमीन। मेरी सेवकाई नहीं, आपकी सेवकाई नहीं है। आमीन। आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आमीन, आमीन। हम केवल प्रतिध्वनि कर सकते, उस प्रकट किए हुए वचन का प्रतिध्वनि है हम। सुनिए आप, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने मोहर इसके ऊपर लगाए, उसने सारी मोहरों को तोड़ा और हर एक मनुष्य निर्मित चीज को तोड़ दिया, ताकि उसे दिखा सके कि वो परमेश्वर है और उससे मोहरबंद नहीं किया जा सकता। आमीन, आमीन। उससे मोहरबंद नहीं किया जा सकता है। आमीन, आमीन। और यहाँ पर चर्चा चल रही है, मोहरें खुली नहीं है। ओ, आप तो अपना तर्क लगा रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन ब्रदर। और मैं पूरे आदर के साथ इस बात को कहता हूँ, क्यों परमेश्वर कहता है कि मैं पुण्य बहाली करूंगा? क्यों मसीह नीचे उतर आया था, एक पैर जमीन पर, एक पैर समुद्र पर, और उस पुस्तक को खोल दिया था। आमीन। और फिर कहते हैं कि आप परमेश्वर कहेंगे कि परमेश्वर ने पूरा वचन नहीं खुला है, और कहेंगे कि कोई तो आएगा और थोड़ा सा हमें उजाला देगा। परमेश्वर सारी बातें सुनिश्चित करता है। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए हमें आमंत्रित किया गया है उसके अंदर, ताकि हम हर एक जो वो है उसकी सभा, उसका हम भाग बन सके। आमीन। मैं यहाँ पर अब बॉम्ब डाल रहा हूँ। हालेलुया। जो कोई चाहे, जो कोई ग्रहण करना चाहे ग्रहण करे, जो कोई भी विश्वास करना चाहे विश्वास करे, और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आमीन और आमीन, आमीन। और लेकिन हमारे लिए ये परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण है। आपको ये वचन नहीं, अब ये वास्तविकता है, ये कोई शब्द नहीं है। आमीन। औरों के लिए केवल शब्द है। इसलिए बेदारी, जब वो वेल्श बेदारी में गए और किसी को लगा कि इस विशेष
जगह में हमें जाना होगा ताकि बेदारी को हम देख नहीं पाएंगे, इस कलीसिया या उस कलीसिया में। नहीं नहीं नहीं, विश्वास कीजिए, परमेश्वर के पास एक दुल्हन है और दक्षिण से उत्तर तक, और वो जानते कि वो कहां पर है और किस प्रकार से उसे तैयार करना है। आमीन आमीन। और यहाँ पर भी आते हैं और कहते कि ये बेंच बेदारी कहां पर है, और उसने कहा तुम तो बेदारी के पास देख रहे हो। आमीन। इसलिए वचन का आप उजाला कहां पर है, आप उसके पास देख रहे हो, हम ही उसके उजाले हैं। हालेलुया, यही वो सच्ची बेदारी है। आमीन और आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर अपने दुल्हन के अंदर से चमक रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आमीन आमीन आमीन। प्लीज ब्रदर। और उसने उस मंदिर के पर्दे को दो भाग कर दिया, और आप परमेश्वर की महिमा उस पेंटिकोस के दिन में लोगों के हृदय के अंदर उतर आई, और उसके बाद से हमेशा से वो सही की है। और बहुत से लोग पेंटिकोस का अनुभव नहीं चाहते हैं। मैं केवल अपना नाम उसमें लिखूंगा और मैं एक अच्छा कलीसिया का सदस्य बन के रहूंगा। मैं अपने दशमांश को दूंगा, मैं ऑफरिंग को दूंगा, दान को दूंगा, मैं टॉयलेट को साफ करूंगा, सब कुछ करूंगा। आपका नया जन्म होना जरूरी है। आप बिना चिन्ह के आप दुल्हन के अंदर होकर रैप्चर आपका नहीं हो सकता, बिना चिन्ह के। आमीन आमीन। और वो हमेशा हमेशा एक सा है, और वो महिमा से महिमा में बदलता हुआ जा रहा है। आमीन आमीन। भाई ब्रैनम कहते हैं और कहते हैं कि धर्म आपको पागल बनाता है। नबी कहते हैं नहीं, आप जानते हैं कि आप अपने सही दिमाग में नहीं रहते जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं खोजते। इसलिए लोग आपको मूर्ख कह सकते हैं। भाई डेविड, आप इतने उत्तेजित क्यों है? मैं आपको बाइबल बताना चाहूँ कि मूर्खता का प्रचार से ही। आमीन आमीन आमीन। मैं वचन के साथ पहचाना गया हूँ। आप मुझे जो भी आप चाहते कह सकते हैं। आप किसके लिए मूर्ख है? आप यीशु मसीह के लिए मूर्ख है या शैतान के लिए मूर्ख है? इसके बीच कोई नहीं है। इसलिए मैं पागल होना चाहूंगा मेरे राजाओं के राजा के लिए, मेरे प्रभु के लिए, मेरे पति के लिए। हालेलुया, आमीन और आमीन। आप अपने सही दिमाग में नहीं है जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाते, क्योंकि वही जीवन का स्रोत है और वही आपको सही दिमाग दे सकता है, सही मन दे सकता है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए रिस्टोर किया है, हमारे उद्धार का आनंद रिस्टोर किया है और सारी बेशुद्धि को हटा दिया वचन के द्वारा। उसने कहा उसके बाद हमें हिया होता है कि हम फिर जोखिम को उठा सके, कि हम फिर कार्य कर सके, और फिर हमें हिया होता है कि परम पवित्र स्थान में हम प्रवेश करें यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और एक नए मार्ग के द्वारा जो उसने प्रकट किया है। और वो देह क्या करता है? और देह उस लहू को ढापे हुए, और लहू के अंदर जीवन होता है, और वो लहू ही था, और ये प्रभु यीशु मसीह की खाल थी। और प्रभु यीशु मसीह का जो मिलावट रही जन्म, अब उसको सुनिए, उसके अपने जीव की जो मांसपेशियां थी, कोशिकाएं थी, और जैसे वो लहू आया, लहू के साथ वो आत्मा आई, और वचन के जल स्नान के धोने के द्वारा हम आत्मा के द्वारा उसके परमेश्वर के राज्य में जन्म लिए हैं। एक यीशु मसीह के अंदर हम एक नई सृष्टि होकर हम जन्म लिए हैं। इसलिए एक ही आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। इस रक्त कोशिका में हमारा जन्म हुआ है, जो कि मसीह यीशु है। इसलिए मैं नबी की इस बात पर बहुत खुश करता हूँ। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, बहुतों के लिए वो सही से बात भी नहीं करना जानता, लेकिन यहाँ पर लेकिन एक प्रोफेसर के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे डॉक्टरों के जैसे बात करता है। ओ मूर्ख शैतान। आमीन आमीन। एक ही आत्मा के द्वारा हम उस रक्त कोशिका में हमारा बपतिस्मा होता है, और हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, और उसके राज में हम उसके साथ संगी वारिस है, और हर एक बातों पर विश्वास करते हैं। हर एक बातों पर विश्वास करते हैं जो पिता ने कहा है। जो पिता ने कहा है वो सत्य है। आमीन आमीन। और इस रक्त कोशिका के अंदर क्या था? परमेश्वर का जीवन था। और वो रक्त कोशिका
वो उसे छेदा गया। किस बात के लिए? कि हमारे लिए उस कोशिका को खोल सके, क्योंकि उस कोशिका में अब तक कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं किया गया था, ताकि हमें, आपको और मुझे उस कोशिका में लेकर आ सके। आमीन, हालेलुया। कितना महान मेरा परमेश्वर है। आमीन, आमीन, आमीन। सिद्धता केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आती है, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए नबी कहते हैं मसीह को वहां पर छेदा गया, ताकि वो रक्त कोशिका वहां पर से छेदा गया, और फिर उसके बाद वहां से रक्त निकला, और उसके अंदर से पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता मिली, ताकि परमेश्वर वहां पर बुला सके और विश्वासी को उस रक्त कोशिका के द्वारा बुला सके फिर से उस सहभागिता में जो उसके साथ थी। हालेलुया। वचन के जल स्नान के धोने के द्वारा। मैं जब मैं इसे पढ़ता हूँ, ओ कि परमेश्वर की योजना ये सिद्ध है। जगत की नींव डालने से पहले मेमना वहां वध किया गया था, और यहाँ पर शैतान आता है और हाँ 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 कहते हुए मैंने तो उसे पकड़ लिया। हमारे पास आखिरी हंसी होगी। आपने मुझे शायद नहीं सुना। हम आखिरी हंसी हमारे पास होगी, और ये अब समय है कि हम अपना अद्भुत आनंद को यहाँ पर पाए, क्योंकि आप जब शकीना महिमा है, जब परमेश्वर का उजियाला, तो आपके पास आखिरी हंसी होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि शैतान क्या लेकर आता है, जुबली तो हमारी होगी। विश्वासी तो जो पिता ने कहा है उस पर हर एक पर विश्वास करेगा। इसलिए परमेश्वर नीचे उतर कर आया उस रक्त कोशिका के अंदर, और उस खून को अपने चारों ओर लपेट लिया। आमीन। ताकि आपको सिद्ध कर सके। आमीन, आमीन। आप मुझे देख सकते हैं, मेरे अंदर बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन उस बीज को देखिए जो यहाँ पर है, वो परमेश्वर का सिद्ध भाग है, ताकि आपको सिद्ध बना सके और आपको फिर से सहभागिता में ला सके। आमीन। और आपको उस रक्त कोशिका में ला सके, ताकि आप अपने सीट बेल्ट को बांधिए। आप अभी उड़ान भरने वाले। वो ईश्वरत्व ही मनुष्य के अंदर वास करता है, जिसको पवित्र आत्मा मिली हुई है। हालेलुया, आमीन, आमीन। दूसरे कोट में नबी कहते हैं, और वो परमेश्वर को वहां से आजाद करके नीचे लेकर आता है। और धन्यवाद दीजिए कि मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ इस जगत, इस पापमय जगत से। मुझे छुटकारा दाम देकर लिया गया है। मेरा फिर से नया जन्म हुआ है। आमीन। और मैं बचाया गया हूँ उसके अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, क्या ही बात है। वो परमेश्वर को वहां से आजाद करता है और उसे पवित्र आत्मा के द्वारा नीचे ले आता है। और सुनिए, और हर एक जो मेरे बारे में लिखा हुआ था मेरे पिता के पास, समय से क्या मैं ठीक हूँ? भाई सैमुअल मुझे हर एक बातें जो मेरे बारे में पिता के शब्दों में लिखी हुई थी मेरे विषय में, यदि मैं इस शब्द पर ध्यान देता हूँ, हर एक वचन जिसको मैं पढ़ता हूँ, हर एक शब्द को, ये वो अप्रयुक्त संसाधन है जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे सामर्थ्य देती है विजय पाने के लिए, जो मुझे अलग चलने के लिए प्रेरित करती है, अलग प्रीति से गीत गाने के लिए प्रेरित करती है। इससे फर्क नहीं पड़ता अच्छे या भले दिन हो, बुरे दिन हो, मैं तो उसकी आराधना करते रहूंगा, क्योंकि जो पिता के शब्द में मेरे विषय में लिखे हुए हैं उसकी पुष्टि हुई है उस कलवरी क्रूस पर, और उसने चिल्लाकर कहा ये सब कुछ पूरा हो गया है। हालेलुया, आमीन और आमीन। आप सुनिए, आप पृथ्वी जानती थी कि वही है। वो एक बड़ी भूईडोल के साथ हिल गया जब वो मरा। चांद और सूरज उन्होंने अपने चेहरे को ढांप लिया। आमीन, 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 हालेलुया। जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने इस दोपहर मेरे अंदर इस बात को डाला। धन्यवाद भाई इस वातावरण को। उन्होंने आनंद और उन्होंने आराधना शुरू की। प्रभु आपको आशीष दे। और सूरज और चांद ने अपने आप को ढांप लिया
यदि हम सृष्टि की ओर फिर से जाते, उसने उन्हें निर्माण किया था, उनका उजाला हो, उसने छोटा उजाला। अब अभी सब बात को जानते हैं उत्पत्ति के अंदर। इसलिए चांद और सूरज जो कि पृथ्वी पर उजाला देने के लिए रखे गए थे, उन्होंने अपने चेहरे को ढांप दिया। आप जानते क्यों? आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर स्पष्ट रूप में था, दृश्य रूप में था, जो जगत की ज्योति था, आप वहां पर था। हालेलुया। वो दृश्य रूप में था हमारे लिए। आमीन। और उन्होंने उसे चूक गए, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने उसे ग्रहण किया है, मैंने उसे स्वीकार किया है। आमीन। वो स्पष्ट रूप में वहां पर था। सूरज ने कहा मुझे अब अंधेरा होना था, चांद ने कहा मैं अब प्रकाश नहीं दे सकता हूं, क्योंकि सबसे चमकने वाला उजाला अब यहाँ पर है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वही उनका रचयिता वहां पर कलवरी क्रूस पर मर रहा था, और सूरज दिन के समय मर गया और वो नीचे चला गया। आमीन। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। और वो उस अधोलोक के नीचे फाटकों पर गया और उसने खटखटाया। भाई ब्रैनम वहां पर खटखटाते। आमीन। आमीन। संतो इस बात को सुनिए, वहां पर उस आवाज आई, कौन है? और वो नहीं जानता था मेरा उद्धारकर्ता वहां पर है। हालेलुया। शैतान ने कहा, उसने कहा अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास दे दे, अब तू इसे नहीं पकड़ेगा। उसने कहा कि आदम की वाटिका में शैतान आदम ने पाप किया था, लेकिन वो कहा कि मैं उस कुआरी से जन्मा हुआ पवित्र परमेश्वर का बेटा हूं, और मैं कलवरी पर मरा, और मेरा खून वहां पर अभी भी गीला है। आमीन। उसका खून अभी भी हमें सबसे गंदे पापी को साफ करता है। मेरा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। और मैं यहाँ पर नीचे आया हूं अब उसका अधिकार को लेने के लिए। आमीन। जब यीशु मसीह ने कहा मैं अब ले रहा हूं, तो आप चिंता मत कीजिए, तब वो अधिकार को संपूर्ण नियंत्रण ले लेता है। आमीन। इसीलिए जब आप वास्तव में नया जन्म प्राप्त किए, तो ऐसा नहीं कि कल आपका नया जन्म हुआ और आज आप खो गए, लेकिन वो संपूर्ण रीति से आपको लेता है, और मेरा जीवन अब उसके साथ वचन के साथ लाइन अप हुआ है। इसीलिए अब कोई कठिनाइयां नहीं कि मुझे इस प्रकार से कपड़े पहनना है, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, मैं तो अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता को प्रसन्न करना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं नीचे उतर आया उस बात को लेने के लिए। और अब इसके आगे शैतान तो किसी को न डराएगा। देखिए शैतान किस प्रकार से अभी भी लोगों के अंदर डर को और भय को जानता है कि तुम नहीं जाओगे रैप्चर में, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम्हारा परिवार खो गया है। संतो आइए, हर एक पिता ने जो कहा है मेरे विषय में, आमीन, वो मेरा है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। वो तो एक झूठ था, दिखावा था। ध्यान से सुनिए, यदि आपको नींद लग रही है तो आप रास्ते अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, पैरों पर खड़े हो जाइए यदि आपको नींद लग रही है। वो तो एक रूखा था, लेकिन उसे कहा कि आप तेरे हाथों में ये नहीं है, आप तेरे हाथों में ये नहीं है। धन्यवाद प्रभु यीशु। अब मैं इसका अधिकारी हूँ। अब मैं अपनी कलीसिया को स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। और उसने शैतान के वहां से कुंजिया को छीन लिया, उसके चेहरे पर मार दिया, और दरवाजे को ऐसे जोर से बंद कर दिया कि सारे नरक की दीवारों को हिला दिया। आमीन। शैतान अब अंधा है। आमीन। आपने नहीं सुना? शैतान अंधा है, और दरवाजे को ऐसे इतने जोर से बंद कर दिया कि उसकी जो आंखों की आंखें हिल गई, और अब वो अंधा है, और उसे लगता है कि उसने आपको पकड़ा है। नहीं नहीं, तू मुझे नहीं पकड़ सकता, मैं तो एक दाम देकर खरीद लिया गया हूँ, और उसका उजाला अब मुझ पर चमक रहा है और मेरे अंदर से। और शैतान तो बहुत देरी से आ गया, और उसके पास अभी कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो तो केवल रूखा है। उसके सारे अधिकार वहां पर छीन लिए गए कलवरी क्रूस पर, जब यीशु मसीह ने मेरी जगह को लिया। और शैतान
उसके पास अब कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। I can see him reach over and get the devil by और the वो neck. वो आकर यीशु मसीह को मैं देख सकता हूँ कि उसने शैतान को गर्दन से पकड़ लिया। Prophet quotes it. मैं बहुत ही I can अच्छा लगता है मुझे जब नबी कोट करते हैं। मैं कल्पना कर सकता हूँ, imagine. I know it's मैं केवल कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ ये Lord सत्य and है। Savior just take it. मेरा उद्धारकर्ता प्रभु ने उसे गले से पकड़ लिया, कहा कि तू क्या समझता है कि तू कौन है? मत भूल, मैं शैतान से पहले था। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी, आमीन। Tries to bluff me. इसलिए शैतान जब मुझे रूखी धमकियां देता है तो मैं कह सकता कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह से भरा हुआ हूँ। और शैतान को उसे गले से पकड़ा, कहा कि तूने बहुत ज्यादा धोखा दिया, लेकिन मैं वो कुंवारी से पैदा हुआ परमेश्वर का बेटा हूँ। अब पाप का प्रश्न खत्म हो गया है। अब तेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि परमेश्वर के लोगों को तू पकड़े और उन्हें मूर्ख बनाए। इसलिए मुझे वो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां दे, और उसे थप्पड़ लगाई और दरवाजे को उसके मुंह पर मार दिया। आमीन, आमीन। अभी भी उसके ऊपर वो चिन्ह है। इसीलिए शैतान को याद दिलाए कि अपने चेहरे को ध्यान दे, चेहरे पर ध्यान दे, अपनी आंखों पर ध्यान दे। इस प्रकार से उसका चेहरा हो गया। आमीन। ये कोई नए सिद्धांत नहीं है, माफ कीजिएगा संतो, ये तो परमेश्वर का वचन है और मैं एक विश्वासी के रूप में इसे लेता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए वो कहता है, दूसरे कुरिन्थी के 5:21 में कहता है, और हम परमेश्वर की आप धार्मिकता बन गए यीशु मसीह के साथ एकत्र होने के। क्या आप इस बात को समझ पाए? नबी कहते हैं, हम परमेश्वर की आप वो धार्मिकता बन गए यीशु मसीह में आने के द्वारा। इसलिए वो कहता है कि वो यीशु, वो हमारे लिए पाप बना। ऐसा नहीं कहता कि वो पापी बना, लेकिन वो हमारे लिए पाप बना ताकि हमारे उसके साथ एकत्व के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। हालेलुया। इसलिए हम इस वास्तविकता को ग्रहण करें तो हम कहेंगे, जो नबी ने कहा, वो हमारे लिए पाप बना वास्तविकता से, ताकि हम उसे ग्रहण करने के द्वारा इस वास्तविकता को विश्वास करते हुए कि उसके साथ एकत्व में आने से हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर के दास ने क्या कहा कि इसको इनकार करेंगे तो उसको भी इनकार करेंगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, यदि आप एक स्वीकार करते हैं तो आप सारा स्वीकार करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि इस कोट के अंत में, लेकिन हमें इसे जीवित करना चाहिए, इसको हमें हमारे लिए जीवित करना था। इसीलिए परमेश्वर ने मलाकी 4 को भेजा। आमीन। इसीलिए उसने सारे लूज एंड जो बिखरी हुई बातें थी, जो 7 कलीसियाई कालों में बिखरी हुई थी, उसे फिर से लौटाया, पुनः बहाली की, ताकि दुल्हन अपना सही स्थान को जो मसीह में है उसे जान सके। इसलिए भविष्यवक्ता कहते हैं कि जब दुल्हन अपने स्थान को जान लेगी तो एक दिन वो उसको रैप्चर वहां पर होगा। इसलिए परमेश्वर को उसके वचन पर हम ले लें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर है और कितने असंभव बातों को लगता है। कितनी बातें असंभव लगती है, लेकिन आप उसे ले लीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। वो बहुत से लोगों के पास आप मैकेनिक्स को प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आपको डायनामिक्स की जरूरत है। और बहुत सी कलीसिया दुल्हन है, लेकिन एक होगी दुल्हन जिसके पास केवल मैकेनिक्स नहीं होगी, लेकिन डायनामिक्स भी होगी। इसलिए सच्चे आराधक उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। यदि आप इसमें से कुछ लेना दूर करेंगे, आप ये मत कहिए कि नबी ने ऐसा क्यों कहा, आप केवल वही कहिए जो नबी ने कहा। आप इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ टेप्स को ही बजाते रहे। इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। हम आप उसके मशीन के जो देह है उसका हम एक भाग बन जाते और उसके स्वरूप में ढलते जाते हैं, और हम उसको देखते हैं कि वो हमारे साथ एक हो रहा है। और हम देखते हैं कि वो जब वो सिर का पत्थर नीचे आ रहा है अपनी दुल्हन के साथ, देह के साथ एक होने के लिए, जब देह और उसकी सिर एक होगा तब पवित्र आत्मा की संपूर्ण सामर्थ होगी और इसके द्वारा वो उठा ली जाएगी। आमीन, आमीन।
और वचन के पूर्ण बहाली के साथ पूर्ण सामर्थ भी आती है। God आमेन। didn't leave us orphans. परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। And he says, trying to और find वो the verse कहते हैं, right now. But all God's word must be परमेश्वर के fulfilled वचन, by सारे us वचन for हमारे this द्वारा age. इस युग में पूरे होने हैं। Why don't you look around? क्यों आप आसपास क्यों नहीं देखते? You can look even the back. आप पीछे देख सकते हैं, Every आसपास word, देख सकते हैं। says the prophet, हर एक God's वचन, word नबी must be बताते, fulfilled by परमेश्वर का हर एक us. वचन हमारे द्वारा पूरा होना है। So God Amen. positioned, He placed us here for a इसलिए right परमेश्वर time, ने a हमें right season. सही समय He के लिए, knows सही ऋतु के why लिए He chose हमें यहाँ पे रखा है, और वो जानता है उसने हमें Am I क्यों यहाँ talking पर about रखा है। David? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई डेविड? मैं उसी का तो प्रचार कर रहा हूँ कि परमेश्वर की योजना थी, और उसकी योजना क्या थी Let me get to that in a कि वो moment. बड़े काम Amen. कर सके। All God's word must be fulfilled by us परमेश्वर for के this सारे age. काम Amen. हमारे द्वारा We पूरे होने इन are दिनों the में, और lights हम of this age. इस And युग if के we प्रकाश are the है। lights of this यदि हम age, उस there's so much इस समय scripture के हम that's प्रकाश है, got to तो be इतने fulfilled सारे in वचन this हैं age, जो and इस it's युग up में to हमारे द्वारा us, पूरे होने हैं। hallelujah, it's up हालेलुया। to us to और ये see हमारे लिए है all God's कि हम righteousness इन is परमेश्वर की सारी fulfilled, and His धार्मिकता हमारे द्वारा righteousness पूरी is हो His सके, word. और उसकी धार्मिकता उसका वचन है। Hallelujah. हालेलुया। आमेन। आमेन। Amen. And at the voice. और वो आवाज, Amen. आमेन, Revelation 10:7. प्रकाशित Amen. 10:7, The seventh angel. जब And then सातवां Revelation दूत, 10:8. और प्रकाशित Amen. 10:8, Go and take the little book which is जा open और in उस the hand पुस्तक of को an ले, और angel. इसे जो Amen. उस So स्वर्गदूत के it's हाथ up में है, to us. और इसे खा ले। और इसलिए ये हम पर है कि हम जाए Take the दूत के little book पास, that is और उस open, छोटी पुस्तक को ले so that जो we खुली can हुई eat है, the little book, ताकि हम so उस छोटी we पुस्तक को become खा the सके, little book. ताकि Amen. हम Brother खुद वो Branham छोटी पुस्तक told बन us जाए। there is भाई only ब्रैनम ने one प्रचार word. किया Flesh becomes word, कि and the वचन word देहधारी becomes हुआ, flesh. और वचन देहधारी हुआ। Hallelujah. आमेन। देह Brother वचन David बन गई। tried to explain हालेलुया। it. भाई डेविड, Don't इसका आप even व्याख्या try to कीजिए, explain it. आप इसकी व्याख्या When he करने की said, कोशिश भी "Let मत there कीजिए। be," जब उसने कहा कि Brother वहां Branham पर said, वो हो, I आमेन। don't भाई know ब्रैनम how कहते much हैं, time it took. I just know कि मुझे नहीं पता कितना समय लगा। and वो he कहते हैं कि said मुझे there पता will था be a वहां पर bride हो गया without spot कि or एक wrinkle. दुल्हन होगी जिसके पास कोई दाग न झुर्री So होगी। here we आमेन। are. इसलिए हम यहाँ पर Praise है। God, the हालेलुया। light of the हम यहाँ पर world. है, हम And इस पर who's जगत की us? ज्योति है, It's up to और us ये हमारे लिए है just to कि see हम that all सारी God's word is परमेश्वर की सारी fulfilled. बातों को पूरा करें। आमेन। आमेन। Amen. The आमेन। prophet is God's reflector. परिशुद्धता How many know परमेश्वर that? का The reflector doesn't reflect परावर्तक है, himself. और Amen. परावर्तक He अपने आप को reflects, प्रतिबिंबित amen, नहीं of करता है। light. There is वो तो something उजाले को that प्रतिबिंबित strikes the करता है। reflector कुछ तो है to make it जो उस reflect. परिवर्तक पर आता है ताकि वो प्रतिबिंबित कर सके। Remember the आमेन। definition of a इस बात को searchlight ध्यान that रखिए, he made from glory? एक ऐसा खोजने वाला उजाला जो महिमा से उसने It's a तैयार किया, device एक ऐसा to यंत्र है transmit a light that has a जो कि reflector. उजाले को प्रतिबिंबित कर सके। Amen. आमेन। And here he continues. और To यहाँ पर वो आगे reflect बढ़ते what? हैं The image कि of क्या Christ, प्रतिबिंबित करे the word. मसीह की And you are a प्रतिमा को, reflector. और आप That's the प्रतिबिंबित reason करने वाले that हैं। he had to even इस यही go कारण there है to reflect the word for that कि वो age. वचन को प्रतिबिंबित कर सके इस युग के लिए। So we आमेन। see इसलिए हम by देखने God's पाते हैं परमेश्वर के अनुभव के द्वारा, God in plain view. परमेश्वर आप स्पष्ट रूप में दृश्य पर है। आमेन। What a privileged people we are. क्या ही सौभाग्यशाली लोग हम हैं। And if we are आमेन। such a privileged, it's और better यदि हम than सौभाग्यशाली लोग हैं, you're King Samuel or King Michael or King David. और ये उससे अच्छा है कि आपका नाम होता किंग से, आप राजा दाऊद, राजा सुलेमान, और मैं शाही घराने से हूँ। मैं अपने आप को और सबको याद दिलाना चाहूंगा कि मैं शाही घराने से ही हूँ। आमेन। और मैं पृथ्वी के राज्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं राजाओं के राजाओं की और प्रभु की प्रभु की बात कर रहा हूँ। आमीन और आमीन, आमीन और आमीन। इसीलिए उसने अपने आप को प्रकट किया ताकि उसका उजाला दृश्य रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप ईश्वर तो फिर से मनुष्य की देह में छिपा हुआ है। आमीन। ये कहते हैं, क्या आप नहीं देख सकते कि जिस घड़ी में हम जी रहे हैं कि परमेश्वर अपने आप को दिखा रहा है। उसने मंदिर के पर्दे को लिया और दो भाग में फाड़ दिया ताकि वे परमेश्वर को दृश्य रूप में देख सके, और वे बहुत ही अंधे थे इसे देखने के लिए। और उसने फिर से आज वही काम किया है, उसने अपने वचन को हमारे सम्मुख रखा है। आमीन, आमीन। इसीलिए शैतान प्रकाशन से घृणा करता है।
और इसलिए हम देखते हैं कि भाई डेविड ये संदेश ठीक ठीक से काम नहीं चल रहा है, बहुत सी चीजें हो रही है, लेकिन प्रभु का वचन ठीक से काम कर रहा है। विश्वास कीजिए इस बात का। बहुत से लोग पंथ और सिद्धांत इसमें से लेके आ रहे हैं, लेकिन मुझे केवल यीशु दीजिए, हालेलुया। मुझे केवल प्रकट किया हुआ वचन और खुली हुई पुस्तक दीजिए, और मैं जानता हूं इसके जरिए, मैं जानता हूं इस तथ्य को कि मैं वहां पर रहूंगा उसके अनुग्रह के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। उसने हमारे लिए, नबी फिर से कहते हैं, जब महायाजक एक बार जाता था, हर एक कदम उठाता था और वो पवित्र 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 कहता था, और नबी कहते हैं, और हमारा चाल इस सामान्य लोगों के लिए, इस जनता के लिए, वो परमेश्वर के लिए केवल पवित्र 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 हो। इस दुनिया के लोगों से अलग होनी चाहिए। क्या आपका जीवन सुसमाचार के योग्य है? इसलिए जब वो मरा, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो तब वो क्या था, वो जो भी चाहे उसके लिए, जो चाहे वो फिर से वही अभिषेक को पा सके, उस शकीना महिमा का, और एक पवित्र जीवन को जी सके, पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु के लिए। और जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। आमीन, आमीन। सोचिए इसके विषय में। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर चल रहा है। भाई ब्रैनम कहते हैं उसने कुछ बातों को हमारे लिए छोड़ दिया। आमीन, आमीन। और हमारे लिए इसका अर्थ नहीं है केवल 5 प्रकार की सेवकाइयों के लिए, नहीं नहीं, आपके लिए, हमारे लिए। आमीन। क्या वो अद्भुत नहीं है? आमीन। यदि आप उस वचन को छोड़ते हैं तो आपने परमेश्वर को छोड़ दिया। तो आप अपनी परिस्थिति को, वचन को तोड़कर उस परिस्थिति के लिए आप वचन को घुमाते हैं, तो आप परमेश्वर को आपने छोड़ दिया है। भाई डेविड, मैं आपसे प्रेम नहीं करता। हम किसी का न्याय नहीं करते हैं, लेकिन वचन न्याय करता है, वचन न्याय करता है। इसलिए आपने वचन को छोड़ दिया तो आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, क्योंकि वो नबी बताते हैं कि उसने कहा कि मैं वचन हूँ। अब नबी कहते हैं मैं वचन हूँ। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके बीच में रहे, तो उसका स्वागत करें और वचन को ग्रहण करें। ऐसा ना हो कि कभी भी कोई भी आपके और वचन के बीच में आ सके। जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये वचन, ये मेरा प्रकाशन है, मैं वचन हूँ, और यही है। और वो तब आगे कहते हैं, मैं अब कल्पना करता हूँ जो वचन हमारे मध्य में, क्या उससे आप प्रभावित है? क्या आप उससे खुश है? स्वयं मसीह नीचे उतर कर आया और एक मुख से बात कर रहा था और वचन का खुलासा कर रहा था, अपने आप को प्रकट कर रहा था। कल्पना करता हूँ क्या वास्तविक रूप से आप प्रभावित हुए हैं इस बात से? हमें तो सबसे खुशनसीब लोग और आनंदित लोग इस पृथ्वी पर होना चाहिए। सबसे विजय पाए हुए लोग हमें होना चाहिए। सबसे आशीषित लोग इस पृथ्वी पर हम हैं। इसलिए अब ये समय है कि दुल्हन इस पर कार्य करे, परमेश्वर के वचन पर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं देख पा रहे। पौल और सिलास वे जंजीरों में थे और उन्होंने गीत गाना शुरू किया, आराधना करना शुरू किया और एक ऐसा वातावरण को निर्मित किया। आमीन, आमीन। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए आप वो परंपरा का अवरोध को आप तोड़ते हैं। जब आप पाते हैं कि वो कल आज युग में एक सा है, तब कोई भी सीमा नहीं है उस बात के लिए जो परमेश्वर यहाँ पर इस कन्वेंशन में कर सकता है। ये परमेश्वर है जो हमसे बातें कर रहा है, लेकिन हमारा रवैया क्या है इसके विषय में? हमारा उत्तर क्या है? आप कहें कि मैं विश्वास करता हूं और सारी बातें संभव है। यदि तुम विश्वास कर सकते हो तो सारी बातें संभव है। ये परमेश्वर, ये मेरा प्रकाशन है, मेरा खुद का प्रकाशन है। मसीह कह रहा है एन मॉर्फे कि परमेश्वर अपने आप को एक मानवीय पर्दे में छिपा रख रहा था। उसने हर एक पर्दे को तोड़ दिया। उसकी उपस्थिति को आप कोई छिपा कर नहीं रख सकता था।
लेकिन जब लोग भूखे अपने हृदय में होते हैं, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे है। और एक जब आप हृदय में भूखे होते हैं तो एक पर्दा है फाड़ने के लिए। हर एक पर्दे को उसकी महान पवित्र आत्मा के द्वारा फाड़ दे। और आज जो खड़ा है वो महान विजेता, जो कल आज युगानुग एक सा है। उसने बीमारी को चंगा किया, विश्वासियों को बपतिस्मा दिया, जैसे वो हर समय करता है। वो महान विजेता है। आमीन, आमीन। आप अगला भाग को सुनिए। और क्या शैतान दौड़ रहे हैं? जी हाँ, ये आपकी गवाही होने पाए। और शैतान अब भाग रहे, दौड़ रहे। और हमें, मुझे लगता है कि पिछला दरवाजा हमें खोलना चाहिए, क्योंकि आप वो जो नाश होने वाले दुष्ट आत्माएं यहाँ पर इंटरनेट पर और यहाँ पर परमेश्वर को उसके वचन पर थामे रहेंगे। आमीन, आमीन। वही यीशु मसीह वो वचन है जो प्रकट हुआ है, और अब ये मसीह तुम्हारे अंदर है। यही प्रकाशन है जो जिसके ऊपर कलीसिया का निर्माण हुआ था। मैं अब समाप्ति पर हूँ। वो कहते हैं वो पहले से ठहराए हुए ही है जो छुटकारे में जिनको लिया जाएगा। और छुटकारे इस शब्द का अर्थ है कि फिर से उनकी पुण्य बहाली करना, फिर से उस स्थान में लेकर आना। छुटकारे का अर्थ होता है कि अपने मूल स्थान में फिर से लेकर आना। हालेलुया। इसीलिए केवल पहले से ठहराए हुए ही उन्हें फिर से लाया जाएगा। छुटकारे का अर्थ होता है कि उनके सही स्थान पर उनको रखना। एक कोई व्यक्ति जो आपको बता सकता है वो नहीं, और जो शैतान आपको बोल रहा है वो नहीं, लेकिन परमेश्वर जो आपको बताता है। आमीन, आमीन। जो कुछ भी परमेश्वर कहता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शैतान, जितने भी चाहे वो एकत्रित हो जाए, वो परमेश्वर के वचन को बदल नहीं सकते। आमीन। यदि उसने हमें हमारा छुटकारा किया है, जब तक कि परमेश्वर ने मसीह को ग्रहण किया है, तो मसीह में आप भी ग्रहण किए गए जगत की नींव डालने से पहले। जब उसने कहा और अस्तित्व में आ गया। मैं आप समाप्ति पर हूँ। आप सब खड़े हो सकते हैं और संगीतकार आगे आ सकते हैं। जगत की नींव डालने से पहले जब उसने कहा और वो अस्तित्व में आया, उसने आपको बोला और आपको उसके साथ छुटकारा पाए हुए उसी समय उसने कह दिया था, क्योंकि हम चिल्ला सकते। जब उसने मेरे नाम को लिखा, उसने बोला, डेविड मेरे लहू से तेरा छुटकारा हुआ है। उसने बोल दिया और उसने मेरा छुटकारा किया अपने साथ। आमीन। और भाई माइकल उसने कोट किया, कल उन्होंने कोट किया था, और उन्होंने नबी के संदेश को कोट किया। मेरे अंदर अब आनंद है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मेरे अंदर वो आनंद है जब मैंने उद्धार की उस योजना को देखा। और अलग कोट, दूसरे कोट में कहते हैं कि मैं तो यीशु के साथ आनंद कर रहा था जब मैंने इन बातों को देखा। इसलिए छोटी दुल्हन, तुम कहाँ थे इससे पहले कि मैं जगत की नींव को डालता? तुम कहाँ थे जब भोर के तारे आनंद से गीत गा रहे थे, और जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां विजय की घोषणा चिल्ला रहे थे, घोषणा कर रहे थे? तुम कहाँ थे? आमीन। जुबली के विषय में बात करते हैं, और हम अब चिल्लाने से डरते हैं और हम नाचने से डरते हैं। आमीन। उस गीत को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ्य है, उस गीत को धीमी आवाज में बजाएं। भविष्यवक्ता कहते हैं, और वो पर्दा नीचे से ऊपर नहीं फटा, लेकिन ऊपर से नीचे फटा। ये बताया कि ये स्वयं परमेश्वर था जिसने इस पर्दे को ऊपर से फाड़ा। आमीन।
आमेन, हालेलुया। The cloud appeared. वो बादल दिखाई दिया Christ himself. और उसने दिखा दिया कि स्वयं मसीह था जो नीचे उतर आया और अपने आप को प्रकट किया। आमेन। और नबी कहते हैं कि आप शीर्ष यहाँ पर है, सिर नीचे उतर आया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और हर एक बातें गवाही दे रही है कि हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। हम फिर से आप उस मार्केट में हम बेचे नहीं जा सकते। आमेन। हमें चिन्हित किया गया है, हमें चिन्हित किया गया है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर मसीह में आता है और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा होता है, शैतान फिर से आपको गुलाम नहीं बना सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आमेन, 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 आमेन। You know the different types in the Bible. आप जानते हैं बाइबल के अंदर अलग अलग प्रकार में भाई ब्रैनम बताते हैं हर एक बाइबल के अंदर जो है वो मसीह और उसकी दुल्हन का प्रकार है। लेकिन हम प्रकार नहीं, हम उसका प्रकटीकरण है। और हम यहाँ पर देखते दाऊद को, और वो गोलियत का सामना कर रहा है और उसे पहला खिंचाव, दूसरा खिंचाव जो सिंह और भालू है उसके जरिए जाना पड़ता था, क्योंकि तू मेरे सामने भाले और तलवार के साथ आता है और सामर्थ्य परमेश्वर का इनकार कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं यहाँ पर आज की रात आता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर सुनिए, और दाऊद ने सुना, दाऊद ने उसकी बढ़ाई को सुना था, उस दुष्ट आत्मा की बढ़ाई को, और यहाँ पर वो आता है। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, नबी कोट कर रहे हैं। और वहां पर वो गया और आत्मा में नाचते हुए, जितना कि वो नाच सकता है उतने नाचते हुए वहां पर गया। हालेलुया। भाई माइकल, मैं नाचना नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ है। जब मैं परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करता हूँ, जब मैं छोटे दाऊद को देखता हूँ, मैं उस गोलियत का सामना कर रहा था। हालेलुया। ओ मैं परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से तेरे सामने आता हूँ, और मैं केवल मैं ही नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ वो तेरे सिर को काट देगा। आमीन। वो अपने आत्मा में नाच रहा था, जितना कि हो सके उतना अधिक वो आत्मा में नाच रहा था। वो दौड़ नहीं रहा था, वो भाग नहीं रहा था, वो उसकी ओर भाग रहा था, और विश्वास से उसने विजय को देख लिया था, और उसने विजय को देख लिया था, और उसने अपनी गोफन को लिया और एक पत्थर को लिया और नाचते हुए आया। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ तो है, जब आप अभिषेक के तले होते हैं, एक सूखी छड़ी वो फलों को लाभ पैदा कर सकती है, आत्मा के फलों को। हालेलुया। और आपके और मेरे फलों को नहीं, लेकिन आत्मा के फलों को पैदा कर सकती है। और आत्मा में नाचते हुए आया, और दाऊद वहां पर आया, और गोलियत ने कहा होगा, हो गोलियत कह रहा होगा, शैतान आपको कह रहा होगा, हो तू नहीं कर पाएगा, तू तो हारा हुआ इंसान है, तू योग्य नहीं है, तुम्हारे पास आखिरी हंसी होगी, आखिरी हंसी तुम्हारी होगी। आमीन। ये क्या था? उसके पास केवल 5 पत्थर थे। FAITH, फेथ, विश्वास। 5 उंगलियों में उसने, जो मसीह के अंदर थी, और उसने गोलियत को लिया और गोलियत को कहा कि तुझे गिरना ही होगा। और उसने जब कहा, सुनिए, पवित्र आत्मा और उस छोटे पत्थर को काबू में लिया, और उस गति को लिया 1000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से। और ये मेरे परमेश्वर की और आपके परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। मुझ पर विश्वास कीजिए। आमीन। उस बाइडेन और पुतिन और सारे राष्ट्रपति, और वे सभी इस रफ्तार को पसंद करेंगे, इस सामर्थ्य को, की 1000 मील प्रति सेकंड की दूरी से, आमीन, रफ्तार से। परमेश्वर ने हमें सबसे उत्तम दिया है, एटॉमिक बॉम्ब से भी उत्तम है, ये उसका वचन है। आमीन। 1000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार, और वो दानव जो गोलियत था उसके सिर पर लग गया, और वो नीचे गिर गया, और दाऊद ने हालेलुया चिल्लाया। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन क्या आपने देखा है, क्या आपने ध्यान दिया, और बाइबल बताती है कि गोलियत अपने मुंह के बल गिर गया। अब यदि आपको बुलेट से आपको गोली लगती है आपके माथे पर, तो आप पीछे गिरते हैं। परमेश्वर सुनिश्चित करना चाह रहा था
कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा यीशु मसीह के नाम के आगे। हालेलुया। गोलियत स्वयं उसे भी उसके सामने झुक के गिरना पड़ा, क्योंकि छोटा लड़का विश्वास के साथ आया यीशु के नाम में, और वो गोलियत उसके अपने मुंह के बल गिर गया। आमीन। विश्वास कीजिए संतो, यदि आप छोटे दाऊद की तरह होंगे, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। आमीन। इसलिए वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे लिए। उसने कहा है, मेरे पास आओ यदि तुम बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ यदि आपकी आवश्यकता है, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, क्योंकि मैं आप स्पष्ट रूप से दृश्य में हूं तुम्हारे लिए। इसलिए आज सुनिए, उसकी सामर्थ्य यहाँ पर है आपके जीवन को बदलने के लिए। आमीन। आमीन। ये असीमित है कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। आपको वो रिवाइव बदल सकता है, आपके उद्धार का आनंद आपको फिर से लौटा सकता है। मैं प्रचार कर रहा था कुछ सप्ताह पहले मॉरिशस टापू में। मैं परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा था। परमेश्वर का सामर्थ ऐसे नीचे उतर आई, और वहां पर कुछ परिवार थे, और बहुत सी ऐसी घृणा की कहानियां थी, और वे एक दूसरे को पास गए और कहे, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। यही वो शकीना महिमा काम कर सकता है। शकीना उजाला यही करता है, ये चीजों को जोड़ता है, परिवारों को जोड़ता है। जो तबाह हो चुके हैं उसकी शांति, जहां पर पीड़ा है वहां पर शांति है, जहां पर उदासी है वहां पर उसकी शांति होती है। इसलिए आज की रात मेरे संतों, आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। मेरा यीशु वहां पर चिल्लाया कि सब कुछ पूरा हो गया। आमीन। आपकी क्या जो भी आवश्यकता हो, आप यीशु मसीह के नाम से उसे दावा कीजिए। आमीन। हालेलुया। आमीन। आप कहेंगे, भाई मुझे नहीं पता, यदि किसी को प्रार्थना की आवश्यकता हो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि कोई वेदी के पास आना चाहता है, ओ भाई डेविड भाई, आज भी ये वचन है, यदि आप वेदी के सामने आना चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। मार्क 16 जिसके ऊपर बहुत विवादित वचन है, क्योंकि शैतान इसे घृणा करता है, क्योंकि जानता है जब परमेश्वर के संत जब वचन के अनुसार काम करते हैं, हालेलुया, तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आमीन। यदि आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को लेते हैं, केवल इस कलीसिया में नहीं, लेकिन अपने घरों में और इंटरनेट पर, यदि आप परमेश्वर को उसके वचन पर लेंगे, आमीन, आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। परमेश्वर के संतों, वो आपके लिए यहाँ पर है, वो आपके लिए यहाँ पर है। इसलिए उसे मत खोइए, उसे जाने मत दीजिए। पुराने नियम में मृत्यु थी उस पर्दे के भीतर जाना, लेकिन अब उस पर्दे से दूर रहना अब मृत्यु है। इसलिए मसीह के पास दौड़िए जब तक आप कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि आप सामर्थ है। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है कि हर एक सलाखों को तोड़ दे। यदि आपकी आवश्यकता है, आप उसे केवल मान लीजिए, अंगीकार कीजिए, और कमजोर कहें कि मैं मजबूत हूँ, और अंधा कह सके मैं देख सकता हूँ, और लंगड़ा कह सके कि मैं चल सकता हूँ। ये परमेश्वर की सामर्थ है, मेरे परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। आमीन। आपके खंबे ने हमें छोड़कर चला नहीं गया। नबी इस दृश्य से चले गए, क्यों? क्योंकि उसका समय पूरा हो गया था, लेकिन अब ये उसके दुल्हन का समय है। एलिएजर चला गया, लेकिन अब रिबका और इसहाक है। हालेलुया। वो अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने आप को उस पर प्रकट कर रहा है। आमीन। हालेलुया। ताकि आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ गवाही को बताना चाहता हूँ। आमीन। मैं अपने लिए बताने के लिए इस बात को नहीं बताना चाह रहा हूँ, उसे मेरे गलत मत समझिए। मैं इस गवाही को बता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक पापी हूँ जो परमेश्वर के अनुग्रह से बचाया गया हूँ। मुझे परमेश्वर की उतनी आवश्यकता है जितनी आपको आवश्यकता है। बाइबल वे कैंप में पिछले साल था, और हमारी एक सभा थी, और परमेश्वर की सामर्थ नीचे उतर आई, और वहां पर एक जवान व्यक्ति था, और उसके पेरेंट्स पालक वहां पर सभा में आए थे, और वो कह रहे थे, हम सभा में आए और उन्हें पता था कि परमेश्वर हमें उत्तर देगा।
यदि यही आपका रवैया है तो जरूर परमेश्वर उत्तर देगा आपको। And their son had a और उनका mental बेटा illness. और उसकी मानसिक He बीमारी couldn't go थी, to school anymore. वह स्कूल नहीं He जा had to पा रहा take था, medication every day. उसे दवाई हर दिन लेने की जरूरत थी Every और day, इंजेक्शन हर रोज लेने की impossible to go to जरूरत है। school. असंभव था स्कूल They जाना। caught him. और उन्होंने उस लड़के को उस सभा में लाया As we prayed, और जैसे हमने प्रार्थना की he testified. और He उसने said गवाही there दी was this great light, और उसने कहा कि एक ऐसा बड़ा उजाला, pillar of fire आग का खंबा between us. As I was हमारे बीच, praying, हमारे जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे हमारे बीच में दिखाई दिया। he आमीन। testified. The उसने family गवाही दी, testified. उस परिवार ने He गवाही went दी back home. और वो जब घर गया डॉक्टरों ने कहा कि ये असंभव केस थी कि कभी वो स्कूल नहीं जा पाएगा, That's how bad he was. कि इतना बुरा वो था। After the आमीन। meetings, और सभा के बाद he went back to school. और वो फिर से अपने स्कूल गया। As a normal आमीन। child. एक सामान्य बच्चे की नहीं। He went आमीन। to see the doctors. और वे डॉक्टर को मिलने जब All गए, is well. सब Never कुछ took संभव a है। medication, never उसके took बाद an उसे फिर injection से anymore. दवाई और इंजेक्शन लेने की जरूरत He नहीं पड़ी। said it. उसने It कहा, is finished. उसने कहा My सब कुछ पूरा stripes, हो you गया are है, healed, he मेरे said. कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके And हो। he's still the same हालेलुया। God. और आज भी वही परमेश्वर है। And that's आमीन। why the theme of these इसलिए meetings is इसलिए इस सभा का जो मुख्य विषय है light. कि वो उजाला। Because आमीन। God is क्योंकि pleased परमेश्वर with you for you. अब स्पष्ट रूप में दृश्य में है आपके लिए, So come to him इसलिए उसके and पास आइए receive ye और your blessing. अपनी आशीषों को As we sing, स्वीकार कीजिए, पा oh, लीजिए। there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Oh, there's a bride rising up. Oh, there's a bride rising up to break every chain, 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 to break every chain. Oh, there is power, there is power. Oh, there is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Oh, there's a bride rising, there's a